July June samala ngato election yang gasu June ngaje live e program na kana den diring ija sama to gyuzeno zamli chi da ne ngata pome ijak suggest ding sia jada no tene daksa ngata jungsi taldik pe chokes ne UT administration ne chokes ne social welfare department tang information department ngis ke zungdela tene ngata diring pome ijak sinji tai no ten mixal do diring e digram na chi yut kya juna tene ngaje ladak sena pomo khaspa mamang poji ngata yot no kagunes ko langi ja tugyus yot ng yodu tugyus med amet chesino tene khongun tene diring ngaje ka skyo juice tene digitalization ka ngata talo ithimino digit all innovation and technology for gender equality skyo pasang inna topic pe ka tene ngata delte ata mamang po khaspa ji ka skyo juice yot tene ngije zik sajat tene yangi je tiwa chitong yot na tene ngaja salajat kalunga langaje juice tena session ngaya ngizot no goma na tangpo nangispa tene goma session arrange dol me conduct chezno second session na nga jalin shiot pasa ngija gune tiva indo tuksa mindo nga jana nyampo ngon chuga za tangi rinjen lazen. Hello, good morning, Juliet Sangmala. So I'm Rinchen Dolma, so I'll be moderating the first session. The topic for the first session today is using digital technology in governance for gender inclusion. The online audience sangma we would like to request King Eja sangma tune in Juksazad. It is going to be a very interesting session. We have 8 speakers in the first session. So during chief guest Jukstenongata First Lady Shrimati Neelam Mishra ji. Chief guest first session chairs. Then we have Commissioner Secretary Information and Tribal and Social Welfare Department, Madam Padma Angmo. Then we have speakers from all other various departments, sectors. Then a program igozungaje dance performance shigne daksa start bzacheseno. Tefia nijat sangme thugyang sifia. We have a very interesting dance performance by 2 girls who have been selected at national level for a dance performance. The students from the Art of Motion, they gosparang ika kone dance performance pongaji daksa zigra pulcheseno. So stay tuned, and as the discussion starts, we'll also have online questions. So please kindly post your questions as the discussion starts. I hope we're looking forward for a very fruitful and interesting session. Thank you all for joining in, and please stay tuned. Mana lo nishu sarik songsin nishu sarik nga lo ya sofana kursi na polish tang chana sab chana na mushkilat na morwaz de jo las po ngyok mu cha la khashi khapa khensala baz nyen chamen deka na las bas ba chana magar khachi gi gong se khasta ka anik duksana hatora khore stock khore deka las ba chingla se du ko bo khachi gong se jana chingla se du ko khel ba meda وچک شدین نقشه چند قطعا خیلی بیلاش می‌ده خون نقشه بعد از قسم لاز با نقشه بینده یا لاز با چیک شلوا گر لاز با نقشه با من من کوش چاه سی چاه منا کلیه جوس رولیس که چاه منا چین لاز باز ما چی لاز با نقشه با من حکمت بس لاز بار باشیم بعدیان لوگا علی چیز خچیز آشو دان چندو یا افرین یا که لاز بدی لاز بسه یا کدی ما چیک باشه یا کنکشل مکشل بالاز باز هزارین چندو آفرین کران لاز بودیم یالا یو آنس هست یو تو قبچه و یان سخن پونچین زرین چندو دیمینا از من نکشل بام جو لاز بو ناری دن چیک باشه ناز داره نا من لاز بو لوس پنا یا نا داره چند دیکات مومنت نا نا دیکات مومنت داره نا دیکات خشم مومنت یا منا شوق چیک لاز بنا دوام کچه من لاز منا سختی کچه من
एक बार फिर से जुले के साथ आप सभी लोगों का स्वागत करना चाहूँगी। आज के हमारे इस लाइव इवेंट की मुख्य अतिथि, द चीफ गेस्ट, द फर्स्ट लेडी ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख, श्रीमती नीलम मिश्रा इज हियर। जोरदार तालियों के साथ हम उनका स्वागत करेंगे। शी इज़ ब्यूटिफुली ड्रेस्ड इन एन attire which is very common to this place. तो इसलिए हम आपको कहेंगे John Palex in Ladakh as well. And for this very beautiful day, I must say. Ma'am, we are going to start with a beautiful dance by these two beautiful kids. They are from the Academy of Art of Motion. It's a dance academy. And the owner will be speaking about it later during the conversation. When we talk about women, one very particular thing is the knowledge that we should have. और ज्ञान अगर हो तो हम कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी पा सकते हैं और कहीं भी जा सकते हैं। मर्दों के साथ शाना बशाना हम चल सकते हैं, जिसको हम औरतों ने हमेशा इसको प्रूव किया हुआ है। तो इसलिए आज के इनका डांस का थीम भी है शिक्षा सबका अधिकार। तो without much ado, I will request both the beautiful kids, good luck to perform a beautiful dance. And ma'am, along with our audience over here, online भी हमारे बहुत सारे लोग देख रहे हैं इस वक्त हमें। तो एक बार फिर से आप सभी लोगों को मैं जुले के साथ वेलकम करूंगी, जितने भी हमारे ऑनलाइन व्यूअर्स हैं। और प्लीज़ एंजॉय दिस डांस एंड उसके बाद हमारे सेशन शुरू होंगे। थैंक यू। स्वतंत्रता के बाद भारतीय नारी की स्थिति में क्रांतिकारी बदलाव आया। आज की नारी राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक सभी क्षेत्रों में आगे बढ़ रही है। पर इन सब की शुरुआत कब हुई? ये कहानी है 19वीं सदी की, जहां भारत देश कई सामाजिक कृत्य जैसे विधवाओं का शोषण, बाल विवाह, देवदासी, सती जैसी प्रथाओं में जकड़ा हुआ था। पुरुष प्रधान संस्कृति में स्त्री का पढ़ना मानो अभिशाप था। ऐसे में क्या होगा स्त्री का भविष्य, क्या होगी स्त्री की दशा, वो एक स्त्री ही समझ सकती थी। और यही बदलाव लाने के लिए दो रणरागिनियों ने जन्म लिया, जिनके नाम थे सावित्रीबाई फुले और फातिमा शेख। कहता ये पल खुद से निकल, जीते हैं चल, जीते हैं चल, जीते हैं चल। गम मुसाफिर था जाने दे, धूप आंगन में आने दे। जीते हैं चल, जीते हैं चल, जीते हैं चल। ओए, कहाँ जा रही है? पापा, पाठशाला। औरत जात को पढ़ने का कोई अधिकार नहीं है। खबरदार घर के बाहर कदम रखा दो। तेरे हाथ में किताब देखी तो तेरे हाथ नहीं रहेंगे। शिक्षा एक शक्ति है जो सारी कमजोरी दूर करे। शिक्षा वो प्रकाश है जो अंधकार को दूर करे। शिक्षा कोई भेदभाव नहीं करती। शिक्षित होना हम सबका अधिकार है। पलवों के नीचे है ठंडी सी एक धरती, कहती है आजा दौड़ेंगे। यादों के बक्सों में जिंदा सी खुशबू है, कहती है सब पीछे छोड़ेंगे। उंगलियों से कल की रेत बहने दे, आज और अभी में खुद को रहने दे। कहता ये पल खुद से निकल, जीते हैं चल, जीते हैं चल, जीते हैं चल। वंडरफुल दैट वाज। मेरे ख्याल से रोंगटे खड़े तो हो गए होंगे आपके, थोड़ा आंखों में आंसू, थोड़ा नम तो हुआ होगा। तो एक बार जोरदार तालियां हमारे इन दोनों बेहतरीन परफॉर्मर्स के लिए। नाउ आई विल hand over the mic to Rinchen Dolma. She's going to talk about the first session, the topic, and who all are the speakers. They'll be invited on the stage. Rinchen Dolma.
Once again, a very good morning to all of you, and wish you all a very happy Women's Day. We extend a warm welcome to the chief guest of our today's event, the respected First Lady of UT of Ladakh, Madam Neelam Sharma ji. It gives me immense pleasure, ma'am, to welcome you, and it's our privilege to have you as a part of our today's panel discussion session. So today, as we all know, the International Women's Day is being celebrated throughout the globe. That is on 8th March, celebrating the social, economic, culture, and political achievements of women across the world, while also making a call to action for accelerating gender parity. It is a day for people around the world to recognize the contributions and accomplishments of women and express gratitude for what they do and the difference that they make in each one of our lives. So as I quote from Michael Obama, no country can ever truly flourish if it deprives itself of the contributions of half of its citizens. So to recognize and to celebrate the contributions of women, and in particular of the UT of Ladakh, we're all here to celebrate this event through this panel discussion. So as the stage is set, I would request respected Commissioner Secretary Ma'am to escort and to kindly take the stage with our today's chief guest, Madam Neelam Sharma, the First Lady of the UT of Ladakh. Sorry, Neelam Mishra, ma'am. I'm really sorry. I beg your pardon, ma'am. So we have other 6 panelists for today's first discussion session. May I request all other panelists to come on the stage as they take names. Ma'am Zahida Bano, she is the Director, Urban and Housing Development Department. DS Madam Gilza Angmo, District Social Welfare Officer Leh. We have Panchayat Sarpanch from Shimde, Madam Kunzang Yangdul. Then we have from Health Department, Dr. Rinchen Leh, Medical Officer from SNM Hospital Leh. We have a young banker from J&K Bank, Stanzin Dazes, and another young lady, a scientist B-level, Assistant Director IT from NIC Leh, Gilza Angmo. So that fills all the seats. So we have all our 8 speakers here for the first session of today's panel discussion. With the permission of the chair, Madam First Lady, we would like to start the first session of today's discussion. तो हम आज के सेशन का जो डिस्कशन पैनल इवेंट का पहला सेशन है वो अब उसकी शुरुआत करने जा रहे हैं, जिसकी टॉपिक है यूजिंग डिजिटल टेक्नोलॉजी इन गवर्नेंस फॉर जेंडर इंक्लूजन. I quote, "Women are the largest untapped reservoir of talent in the world." Hillary Clinton has said this. So taking a clue from this, let's hear it from our panelists and try to join the dots to come full circle by the end of this discussion session. I would request all our lovely audiences who have joined us online to kindly stay tuned in till the end of this
Even it is definitely going to be a very interesting one. And kindly do keep posting your questions that we would be taking online. तो आप लोगों की जो भागीदारी होगी इस सेशन में आपके क्वेश्चंस के थ्रू वो इस सेशंस को और भी इंटरेस्टिंग और फ्रूटफुल बनाएंगी. So at the very beginning, I would request the First Lady, Madam Neelam Mishra, to kindly give your opening remarks in context of today's first session topic, that is using digital technology in governance for gender inclusion, which is aligned with the UN theme for this year's International Women's Day celebration, Digital Innovation and Technology for Gender Equality. Namaskar. Is it audible? Happy Women's Day to each one of you. Each one of you, I mean all Ladakhi women. And also Happy Holi. And आज के लिए आई थिंक सबसे अप्रोप्रिएट होली है. बहुत सारे रीज़न में होली मनाई जाती है, पर बरसाना की होली, लठमार होली ज़्यादा वुमेंस डे से रिलेट करती है. तो अगर आप लोगों को नहीं पता है तो गूगल कर लीजिएगा टू फील एम्पावर्ड. और नाउ आई वांट टू से दैट अचीवमेंट ऑफ कोर्स इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट. सो व्हेन पैनल डिस्कशन ऑल मेंबर्स स्पीक अबाउट देयर अचीवमेंट, I will like that they should also have a roadmap targeted towards the women empowerment through digitization. And you must give कि हम कितने दिन में कितने women को empower करेंगे इस means के द्वारा. क्योंकि ज़्यादातर क्या होता है कि हम लोग Women's Day celebrate करते हैं. For years we are talking about gender equality. और next day we are busy in our own work. और हम इस टॉपिक को भूल ही जाते हैं क्योंकि नेचुरली प्रेशर भी बहुत है, काम है, सब कुछ है. पर अगर हम आज आप जब भी अपने बारे में बात करते हैं या यू स्टार्ट कि हम ये करा हमने, और तो उसमें प्लीज़ ऐड कि मेरा रोड मैप क्या है, टारगेटेड रोड मैप, नॉट जस्ट लाइक दैट कि वी विल बी डूइंग दैट. उसकी जगह पे आप ये बोलिए कि आगे आने वाले 2 महीने में, 3 महीने में मैं अगर एक को भी कर सकते हैं, एक भी वुमेन को एम्पावर कर सकते हैं तो उनको करिए. जैसे मान लीजिए उनके पास कोई रिसोर्सेज नहीं है, मैं एग्जांपल देना चाहूँगी, और मेरे पास स्मार्टफोन है, तो मैं शायद दिन में 15-20 मिनट उनको इसके बारे में एजुकेट कर दूं जिससे उनका कुछ भला हो सके, जिसमें भी वो उनका स्किल है, और उससे उनको कनेक्ट कर दीजिए. दूसरा, अगर NGOs हैं तो NGOs के पास ज़्यादा रिसोर्सेज होते हैं काम करने के लिए क्योंकि उनका कनेक्ट ज़्यादा होता है. बाकी हम लोग तो अपने अपने जहाँ पर भी जॉब करते हैं वहाँ रिलेटेड होते हैं, तो हमारे पास सीमित दायरा होता है कि जहाँ काम कर रहे हैं उनके बच्चे हैं, उनकी वाइफ है, उनका कोई लड़की है जो पढ़ना चाहती है पर पढ़ नहीं पाती है, हम उसको हेल्प कर पाते हैं अगर हमको पता चलता है तो. लेकिन जो NGOs है, क्योंकि आप पब्लिक के बीच में जाते हैं तो आपके पास ज़्यादा नॉलेज होती है कि किसको किसको ज़रूरत है हमारी, उनके लिए हम प्रोवाइड कर सकते हैं. और हमेशा ज़रूरी नहीं होता कि हम बहुत सारे पैसे खर्च करें तभी हम हेल्प कर सकें. हम अपने को भी शेयर कर सकते हैं, हम अपने फ़ोन से भी उनको कनेक्ट कर सकते हैं. या तो अगर एक कोई सेंटर है तो इंस्टीड ऑफ कि सबको आप एक एक स्मार्टफोन दीजिए, आप एक वहाँ पर डेस्कटॉप रख दीजिए जिसमें जब भी कोई आएंगे तो उनकी मदद होगी. हमने खुद भी अपनी आंखों से देखा हुआ है कि अगर एक कमरे में एक डेस्कटॉप लेके और एक फ़ोन लैंडलाइन भी लेके अगर एक वुमन बैठ जाती है और ऊपर लिख देती है कि जिसको आधार बनवाना है, जिसको कहीं इनरोल होना है, वो हमसे मदद लें, फॉर्म भरवाने में मदद लें, तो वो काफ़ी बड़ा हेल्प होता है लॉन्ग रन में जाके. फर्स्ट थिंग भाई, आपके सिर्फ बोर्ड लगने से एक तो उनको अवेयरनेस होती है कि हाँ ये चीज़ें अवेलेबल हैं. हमारे पास राशन कार्ड नहीं है तो राशन कार्ड चाहिए, वोटर ID नहीं है वोटर चाहिए, आधार नहीं है तो आधार चाहिए, या हमारे बच्चे को स्कूल में भेजना है तो मैं इनसे ही पूछ लेती हूँ कि कौन से स्कूल में जहाँ पर फ्री एजुकेशन है, क्योंकि मेरे पास पैसा नहीं है तो मैं इनसे पूछती हूँ पास में हम कहाँ भेज सकते हैं, या हम गवर्नमेंट की स्कीम का कौन सा हेल्प ले सकते हैं, वो भी आप बता सकते हो. तो बिफोर स्टार्टिंग आई वॉन्टेड टू से दिस ओनली कि प्लीज़ इंस्टीड ऑफ ओनली अचीवमेंट नहीं बोल के आप अपना टारगेट भी दीजिए, रोड मैप दीजिए, हाउ यू आर गोइंग टू एम्पावर विमेन, और कितने विमेन को कर पाएंगे, 1 को कर पाएंगे, 5 को कर पाएंगे, 10 को कर पाएंगे. थैंक यू वेरी मच. वंस अगेन हैप्पी विमेंस डे.
Thank you very much, Neelam ma'am. You've really well set the grounding for today's panel discussion. और आपने जो भी बात बोली है कि अचीवमेंट्स की बात ना करके वुमेन एम्पावरमेंट में हाँ क्या रोल होगा, सो आपने मेरा काम आसान कर दिया ये पॉइंट्स रेज करके. थैंक यू सो मच फॉर योर लवली रिमार्क. Honestly speaking, I call myself digitally illiterate, but having got the opportunity to work with Padma ma'am, our Commissioner Secretary, information, I've really realized, what does it really mean by digital, to be digitally educated, and how important it is to stay updated with the technology and digital interventions. Though we cannot come anywhere close to ma'am's energy and expertise, but sure she can be a motivation and inspiration for all of us. Ma'am, so taking from there, I would like to ask you about the major interventions that has been brought by the administration in terms of digital and technology initiatives in government system. How do you look at it? And do you see any impact of these digital interventions in bridging the gender gap? Because we are going online, or we have renowned speakers, I'd keep it short. I would like to identify कि 4 हमारे कौन से interventions हैं जो priority में I would like to identify, जिससे मुझे लगता है governance में एक बहुत major change आया है digitization की तरफ. First, जब हम DBT की बात करते हैं, direct benefit transfer, तो दैट इज़ समथिंग सिस्टम जहाँ पे आपका चाहे पेंशन हो, चाहे स्कॉलरशिप हो, चाहे आपका सैलरी हो, थ्रू PFMS सैलरी डायरेक्टली हमारे अकाउंट में आता है. थ्रू DBT ऑल द बेनिफिशरी डायरेक्टली गोज टू द बेनिफिशरीज अकाउंट. आइडिया गवर्नमेंट का डेफिनेटली था कि एक तो ट्रांसपेरेंसी आए, अकाउंटेबिलिटी आए, और एनी काइंड ऑफ करप्शन कैन बी अवॉइडेड. लेकिन इसका एक बहुत अच्छा बेनिफिट महिलाओं को हुआ है कि कोई भी महिला चाहे वो पेंशन लेने आए, विडो अगर हस्बैंड का पेंशन लेने आए, शी डजंट हैव टू एनकाउंटर any kind of an uncomfortable situation, any kind of a harassment, sexual or otherwise. So मुझे लगता है एक ये बहुत बड़ा achievement है, step है, जिसने digitization के थ्रू एक gender equality, gender inclusion में help किया है. Secondly, क्योंकि हम लोग यहाँ पे UT administration में पिछले 2 साल में I joined in January 21, और around January 21 में e-office introduce किया गया. That was something, again, for accountability, transparency, efficiency. Women को advantage रहा है क्योंकि कई women चाहती हैं थोड़ी flexible working hours में. So मैं ये नहीं कहूँगी कि हम लोग अपने ऑफिस में आजकल women को ज़्यादा लीव दे रहे हैं, but there is a possibility. अगर किसी women को बहुत कोई urgent work है, still because e-office is there, we can actually think कि एक flexible working hours हम women को दे सके. क्योंकि जब हम gender equality, equity की बात करते हैं, I think convenience and security, that is what a woman is looking for in a workspace. Also, when I talk to some of the staff, I realize कि उन्होंने कहा it also helps in avoiding any kind of a sexual harassment. क्योंकि physical, intimacy in a way reduce होती है. You don't have to go to anybody's office. Class 4 हमारे कई महिलाएं हैं. They don't have to carry files to any male, offices. So वो भी एक अच्छा पॉजिटिव आउटपुट रहा है मैम ये ऑफिस का कि थोड़ा इंटरेक्शन, फिजिकल इंटरेक्शन कम रहा है, तो सेक्सुअल हरासमेंट के केसेस कम रहे हैं. 2 important interventions ma'am I would like to add regarding particular department. Education is the most crucial aspect ma'am for any kind of a gender inclusion, gender empowerment, gender equality. UT administration in last 2 years में YONTAB school, government school के बच्चों को दिया है. It is a digital app on which digital education is given. Now कई बार गाँव में ऐसा होता है, शायद शहरों में भी होता हो कि गर्ल्स का अटेंडेंस कई बार स्कूल्स में थोड़ा कम रहता है, बिकॉज गर्ल्स समटाइम्स दे वांट टू हेल्प देयर मदर्स आउट. कहीं भी एक महिला को अगर घर में किसी कारण कोई हेल्प चाहिए, गाँव में भी, चाहे टू टेंड द फार्म और समथिंग, तो गर्ल्स कम एंड हेल्प देम, जिसके कारण कई बार उनके क्लासेस हो सकता है मिस हो. तो YONTAB और ऐसे एजुकेशनल एप्लीकेशंस जो हैं, जो डिजिटल इंटरवेंशंस है, दैट इज हेल्पिंग गर्ल्स स्टूडेंट्स मोर. नाउ कॉलेजेस में, हायर एजुकेशन में वी हैव स्टार्टेड MOOCs, massive open online courses. So स्वयं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में स्वयं प्लेटफॉर्म है. तो यहाँ पर गर्ल्स, अगेन इवन गर्ल्स इन हायर एजुकेशन, समटाइम्स दे हैव टू स्टे एट होम, कई बार वो क्लासेस नहीं अटेंड कर सकती, so they will not miss out on classes. So gender inclusion में digital learning apps are very important. And finally, because again in education I would talk about astronomy labs, Atal Tinkering Labs, ma'am, these are all science
प्रमोट करने के लिए गर्ल्स एजुकेशन में. सो दैट इज़ गोइंग टू हेल्प अ लॉट. एंड फाइनली, क्योंकि मैं सोशल वेलफेयर देखती हूँ, हमारे जो भी इंटरवेंशंस है वुमेन सिक्योरिटी के लिए, वन दैट आई वुड लाइक टू हाईलाइट इज़ वन स्टॉप सेंटर्स. तो वन स्टॉप सेंटर्स में कोई भी महिला हेल्प के लिए जा सकती हैं. हाउ डिजिटाइजेशन इज हेल्प इज वी हैव वुमेन हेल्पलाइन नंबर. आजकल इन लद्दाख वी आर यूजिंग 112, द इमरजेंसी रिस्पॉन्स सिस्टम. तो उसमें कोई भी महिला जो किसी ट्रबल में है, एनी काइंड ऑफ काउंसलिंग शी रिक्वायर्स, वो ऑनलाइन कर सकती हैं. सो ये डिजिटल इंटरवेंशंस, आई थिंक दीज आर द 4 डिजिटल इंटरवेंशंस विच आई फील इज गोइंग टू हेल्प इन जेंडर इक्विटी एंड इंक्लूजन. Thank you, Padma ma'am, and I too endorse it because being a government employee, हमने भी जो e-office के जो फ़ायदे हुए हैं, even as a women, practically हम सब ने ये देखा है. Thank you for your talk. तो गवर्नेंस में टेक्नोलॉजी या डिजिटल इंटरवेंशन की बात को आगे बढ़ाते हुए नेक्स्ट मैं जानना चाहूँगी जाहिदा मैम से, जो डायरेक्टर हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट से हैं. मैम, आज तक के आपके सर्विस टेन्योर में गवर्नमेंट ने जो टेक्निकल या डिजिटल इंटरवेंशंस किए होंगे, और जितना मुझे याद है जब आपके टेन्योर में म्यूनिसिपल कमेटी ने डिजिटाइजेशन ऑफ डेथ एंड बर्थ सर्टिफिकेट्स भी जारी किए थे, तो ऐसे और जितने इनिशिएटिव्स हैं उनके बारे में आपसे हम जानना चाहेंगे. एंड बीइंग अ विमेन ऑफिसर, तो जब ऐसे टेक्नोलॉजीज आते हैं तो क्या ये जेंडर इक्विटी या पैरिटी की बात करें, उसमें किस हद तक ये चीज़ें हमें फ़ायदा देती है? यस रिंचन, अभी आपने जो क्वेश्चन पूछा वो बहुत मतलब ये अभी हम अभी से नहीं कह सकते हैं कि ये डिजिटाइजेशन जब से कोविड के बाद मतलब ज़्यादा इसमें वो हुआ है, तो उसमें हमारा बीइंग म्यूनिसिपैलिटी जो है सर्विसेज, यू नो आवर बेसिक जॉब इज़ टू प्रोवाइड सर्विसेज टू द पीपल. तो लोगों को जो हम सर्विसेज देते आ रहे थे, लाइक मैनुअली वी यूज टू इशू ट्रेड लाइसेंस, बर्थ एंड डेथ सर्टिफिकेट्स एंड वट एवर सर्विसेज दे आर रिक्वायर्ड, लाइक रजिस्ट्रेशन ऑफ देयर शॉप्स एंड ऑल, जो हम मैनुअली करते थे तो लोगों को बहुत प्रॉब्लम होता है. इवन कि मैक्सिमम जो हमारे जो इंटरप्रेन्योर्स होते हैं वो लेडीज़ होते हैं लद्दाख में, तो उनको बहुत टाइम एंड अगेन उनको ऑफिस आना पड़ता था. तो जब ये डिजिटाइजेशन की बात कर रहे हैं तो हमारा अभी सर्विसेज जो है, हमारा बर्थ एंड डेथ सर्टिफिकेट वो ऑनलाइन हो रहा है, तो किसी को मतलब लाइक ऑफिस आने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है. तो वो अपना ऑनलाइन अप्लाई करें, ऑनलाइन उनको अपने मेल हम उस पर वो हम उनको सेंड कर देते हैं, तो घर में बैठे बैठे ही उनको अपना वो सर्टिफिकेट जो भी चाहिए होगा वो मिलता है. तो इस तरह ट्रेड लाइसेंस, लाइक इंटरप्रेन्योर्स जो हम म्यूनिसिपैलिटी में किसी को अगर अपना ट्रेड करना हो, बिजनेस करना हो, तो वो ट्रेड लाइसेंस हमारे यहाँ पे वो अप्लाई करते हैं. दैट टू हमें सिर्फ जब डिजिटाइजेशन से पहले हम उनको मैनुअली आके ऑफिस में, बिल्कुल अप्रैल से जब हम स्टार्ट करते थे, बहुत रश और रिसोर्सेज भी हमारे पास कम है, तो मतलब बहुत लोगों को सफ़र, मतलब सुबह आएंगे, रात शाम को 5-6 बजे तक उनको वेट करना पड़ता था. तो अभी जब से हमने ऑनलाइन वो किया है, वो भी इसी तरह हम अपने मेल पर वो बना के सारा अप्लाई करते हैं. तो बट दैट शुड बी अपडेटेड, जो हम एवरी ईयर करते हैं ट्रेड लाइसेंस. तो लाइक बिजनेस मैन जैसे होटल ऑनर्स है, जितने भी सारे यहाँ पे टूरिज़म के रिलेटेड जो जॉब करते हैं, अदरवाइज़ उनको ना इतना टाइम वहाँ पे वेस्ट करना पड़ता था, तो उनको मतलब ऑनलाइन जब से शुरू हुआ तो वो भी हम देते हैं. तो इन एडिशन टू दैट जो हम फाइन करते हैं मैम, एमसी में हमारा टाइम एंड अगेन बहुत वायलेशंस होता था, तो मैनुअली जाके लोगों को मतलब फाइन रेगुलराइज करने के लिए फ़ाइन करते हैं. तो अभी हम पॉश मशीन हमने लिया हुआ है, तो ऑन स्पॉट हम उनका वो लेते हैं, ऑन स्पॉट वहीं पर फ़ाइन करते हैं. तो बहुत मतलब सैनिटेशन में हमारा बहुत काफ़ी इम्प्रूवमेंट्स हुआ है मैम, क्योंकि कर रहा है. तो दैट टू अभी हमारे पब्लिक भी, वुमेन भी स्पेशली बहुत अवेयर हुआ है ये क्या कहते हैं क्लीनलीनेस के टुवर्ड्स. तो कभी होता है वो जस्ट दे क्लिक ए फ़ोटो जहाँ पे गार्बेज ज़्यादा हो, तो दे जस्ट सेंड अस, तो इमीडिएटली वी कैन टेक एक्शन. तो ये तो दैट्स वाई टाइम एंड अगेन वी आर रिक्वेस्टिंग आवर यू नो वुमेन फेलो, क्योंकि ज़्यादा क्लीनलीनेस के टूवर्ड्स घरों में होता है. तो वन इंसिडेंट आई शुड कोट,
एक बार हमारा वहाँ पे किसी लेडी लेडीज ही होता है, तो उन्होंने वो सेप्टिक टैंक का वो हमारे नाले में ही छोड़ दिया किसी का, वहाँ टुकचा साइड में। तो दूसरी लेडी कह रही थी आपको सुनाई नहीं देता, MC रोज़ वहाँ पे चिल्ला के कितना सफाई के लिए बात कर रहे, तो दे यूज टू आपस में वो झगड़ा कर रहे थे कि ये कर रहे हो। तो बट फिर वहाँ पे कोई फ़ोटो क्लिक करेगा जो ही हमारे पास आ जाएगा, तो इमीडिएटली वी टेक एक्शन। तो वो हमारे लिए मतलब इसमें हमें बहुत वो हुआ है। तो रिसेंटली हमारा यहाँ पे लिगेसी वेस्ट है मैम, बॉम्ब गार्ड, जो हमारा 40-50 ईयर्स ओल्ड लिगेसी जो वेस्ट है ना डम्प्ड, वो तो वी आर क्लीनिंग दैट अंडर अ प्रोजेक्ट। बट अनफॉर्चुनेटली आपने देखा होगा हर जगह होता है वहाँ पे, कभी कभी फायर इंसिडेंट बड़ा कुछ हो जाता है, कहीं धंस जाता है। तो माइनर सा एक इंसिडेंट हुआ तो उसको बड़ा हाईलाइट किया था, तो फिर हमने इमीडिएटली वो देख के ना उसी टाइम करके फायर ब्रिगेड सबको बुला के मतलब वो हुआ। अदरवाइज ऐसे इंसिडेंट्स का जब वहाँ पे लिगेसी था होता रहता था। तो अभी तो बिल्कुल लोग अवेयर है, और इस तरह ना जस्ट ये टेक्नोलॉजी इतना मतलब हुआ है तो वी कैन ईजिली टेक एक्शन। एंड मोर ओवर मैम जो ऑफिस की बात कर रहे थे, तो दैट इज़ रियली हमारे लिए ना, हमें लगता है कि इट्स जस्ट ये पहले होना चाहिए था। वी यूज्ड टू थिंक कि अदरवाइज मैम हम जब जो एस्ट वाइल JNK में थे, तो एक फाइल की पीछे वी वर फोर्स्ड टू टाइम एंड अगेन हमें जाना पड़ता था, फिर लोकेट करना पड़ता था, हमारा कुछ आउटपुट नहीं होता है। वट एवर प्रपोजल वी यूज टू सबमिट दैट इज़ नॉट फाइनलाइज। सो अभी ऑफिस में है, तो वी आर इफ़ वी कीप ऑन ट्रेसिंग द फाइल, एकदम हमारा सब कुछ मतलब टाइमली हो जाता है। दैट इज़ रियली फॉर द डेवलपमेंट। आई थिंक इट्स रियली, आई एम सो हैप्पी विद दिस ऑफिस मैम, रियली वट एवर। अदरवाइज एक लेटर को लेके वी यूज टू हमें ये करना, सर फ़ोन करो, फैक्स करो, फैक्स नहीं जा रहा है, ये नहीं हो रहा है, फ़ोन नहीं हो रहा है, हमें कुछ हमारा सॉल्व नहीं हो रहा है। बट ऑफिस इज सच ए आई एम रियली वेरी आई एम technological boon for women. Exactly, yeah. Because So thank you, Achale. Like we'll come back to you in a short while. And the point you raised about, I think during the discussion हम इस point पे शायद वापस आएंगे कि जहाँ पे टेक्नोलॉजी की हम फ़ायदे की बात कर रहे हैं मैम, वहाँ पे इसके कुछ थ्रेट्स भी हैं। जैसे इन्होंने कहा कि एकदम फ़ोटो बेच के क्लिक कर देते हैं, सो दैट इज़ वन मेजर थ्रेट ऑल्सो, नेगेटिव पार्ट ऑफ दिस व्हाट्सअप और इंटरनेट का। सो उस पर हम वापस आएंगे। सो बिफोर दैट, टेकिंग द कन्वर्सेशन फॉरवर्ड, वी हैव अनदर डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर हियर, मैडम नीलजा आंगमो, डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर ऑफिसर। सो सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की बात करें तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट और सिग्निफिकेंट डिपार्टमेंट ये है, खासकर महिलाओं से भी जुड़ी हुई, क्योंकि इट्स ऑल अबाउट वेलफेयर स्कीम्स। तो मैम नीलजा से हम जानना चाहेंगे कि डिपार्टमेंट ने ऐसे क्या इनिशिएटिव्स लिए टेक्नोलॉजी बेस्ड, डिजिटल बेस्ड, जिससे जो रिमोटेस्ट कॉर्नर में जो लास्ट बेनिफिशियरी होगा उन तक जो गवर्नमेंट के वेलफेयर स्कीम्स है, खासकर महिलाओं से रिलेटेड या गर्ल चाइल्ड से रिलेटेड, वो उन तक पहुंचाने के लिए। Julie, good morning. I wish all the ladies here and online viewers a very happy Women's Day. So regarding my department, ma'am has already reflected a very important part, that is DBT, Direct Benefit Transfer. इससे क्या होता है, इससे लीकेज बिल्कुल ज़ीरो हो जाता है। तो हमारे डिपार्टमेंट का बहुत ही इम्पोर्टेंट स्कीम, दो इम्पोर्टेंट स्कीम है। फर्स्ट इज़ पेंशन एंड दूसरा स्कॉलरशिप। इफ़ वी टॉक अबाउट स्कॉलरशिप में हमारा पूरा 100% डिजिटाइज्ड है, और स्कॉलरशिप DBT के थ्रू जाता है स्टूडेंट्स को। बिसाइड्स दैट जो पेंशन जो स्कीम है हमारा, वो भी पूरा DBT के थ्रू जाता है, जिससे लीकेज बिल्कुल ऑलमोस्ट ज़ीरो हो जाता है। सेकेंडली, क्योंकि डायरेक्ट अकाउंट बेनिफिशरी के अकाउंट में जाता है, तो हमारे जितने भी विमेन बेनिफिशरीज़ हैं वो अपने हिसाब से जो भी उनको मिलता है वो यूज़ कर सकते हैं। सेकेंड इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ Aadhaar seeding, because Aadhaar seeding is very important to prevent duplicacy. जो हमारा जो स्कॉलरशिप का जो स्कीम है उसमें 100% आधार बेस्ड पेमेंट होता है, तो उस वजह से
बिल्कुल डुप्लीकेसी नहीं होता है। दूसरा जो हमारा पेंशन स्कीम है उसमें अराउंड 70% हमारा आधार सीडिंग हो गया है, तो उस वजह से भी उस स्कीम में डुप्लीकेसी का काफ़ी हद तक प्रिवेंशन हो गया है। And I also want to convey that जो हमारे पेंशन स्कीम है उसमें विमेन बेनिफिशरीज ज़्यादा है कंपेयर टू मेन बेनिफिशरीज, जिसके कारण हम ये भी कह सकते हैं कि जो हमारे क्योंकि पेंशन डायरेक्टली विमेन के अकाउंट में जा रहे हैं, उनको एम्पावरमेंट डायरेक्टली हो रहा है। With respect to scholarship also, the number of girl student beneficiaries are more than men boy student beneficiaries. And one important point I want to reflect here, digital technology intervention के लिए जो beneficiaries है, जो target audience है, उनका involvement बहुत ज़्यादा important है। तो उनके awareness के लिए हमें कुछ step उठाना पड़ेगा, because intervention on our part is important, but we should also try to involve them in this issue. And beside that, during my 10 months in this department, I also felt that, for example, in pension, we can integrate birth and death registration portal, if we have any, with the pension portal. That way we can easily weed out the beneficiaries who have passed away. So this kind of intervention is very important. So yeah, that's it. Thank you. Thank you, Nilzale. So to our online audience, हम आशा करते हैं कि आपको ये जो डिस्कशन चल रहा है इंटरेस्टिंग लग रहा होगा। ऐसा मत सोचिए कि यहाँ पे फिर से हम एक गवर्नमेंट प्लेटफॉर्म खोल के रखा है, बिकॉज अनदर इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ डिजिटल और टेक्नोलॉजिकल प्लेटफॉर्म इज़ इंफॉर्मेशन डिसमिनेशन। और हम चाहते हैं कि आज के इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए जितने भी विमेन ऑडियंस है या जितने भी लोग हैं, उन सब तक जो ये इम्पॉर्टेंट स्कीम्स है, जो बातें बता रहे हैं, वो पहुँचे। तो इसी को आगे बढ़ाते हुए नेक्स्ट हमारे साथ है यहाँ पे डॉक्टर रिंचनले। तो हेल्थ सेक्टर में अगर देखें तो पिछले कुछ सालों में कई सारे बहुत महत्वपूर्ण ट्रांसफॉर्मेशंस हमने देखे हैं बाय द वर्च्यू ऑफ डिजिटल एंड टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस। तो उनसे जुड़े हुए आप खासकर महिलाओं से जुड़े प्रेगनेंसी ट्रैकिंग हो गया या ई सेवा हो, नहीं संजीवनी हो गया, तो उनको लेकर आप हमें थोड़ा बताएं। थैंक यू रिंचनले। गुड मॉर्निंग एंड अ वेरी हैप्पी वुमेंस डे एवरीवन। तो नॉर्मली देखा जाए तो जैसे हर डिपार्टमेंट में डिजिटलाइजेशन बहुत ज़्यादा हो गया है, तो हेल्थ डिपार्टमेंट में भी काफ़ी सारा हम जितने भी काम कर रहे हैं वो डिजिटल टेक्नोलॉजी की वजह से ही कर रहे हैं। वैसे लिस्ट अगर देखा जाए तो काफ़ी सारे हैं, लेकिन मैं कुछ चीज़ों पे स्ट्रेस दूंगी जिसमें महिलाएं पार्टिसिपेशन ज़्यादा है, जिसमें महिलाएं जो है वो ज़्यादा पार्टिसिपेट कर रहे हैं और फैसिलिटी अवेल कर रहे हैं। सपोज़ हमारे हॉस्पिटल में है, अब हॉस्पिटल को छोड़ दीजिए, बाद में आती हूँ, पहले हम ग्रास रूट लेवल से बात करते हैं। मैम जितने भी हमारे सब सेंटर्स है जो विलेज लेवल पे है, ग्रास रूट लेवल पे, वो सारे हमने जो सब सेंटर्स है उसको अपग्रेड करके हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बनाया मैम। तो हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पे अभी कॉम्प्रिहेंसिव स्क्रीनिंग चल रही है मैम, 12 पैकेजेस ऑफ सर्विसेज देते हैं। वहाँ पे एक मेन पार्ट की एडिशन किया है जिसको हम कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर बोलते हैं मैम। तो अच्छी बात यह है कि हमारे पास जितने भी कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स है सारे फीमेल हैं मैम। तो यहाँ पे पूरे लद्दाख में 3 या 4 मेल CHO से और उसके अंदर उनके अंदर जो काम करने वाले होते हैं वो आशा और FMPHW होते हैं, ANM जिसको हम बोलते हैं मैम। तो इसके थ्रू हम क्या करते हैं कि कम्युनिटी जितने भी कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स है वहाँ पे हमने जो हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर है उसको हम टेक्नोलॉजी से सपोर्ट किया है। वहाँ पे एक उनको डेस्कटॉप दिया हुआ है और कंप्यूटर ये कहते हैं प्रिंट आउट दिया हुआ मैम, प्रिंटर। तो यहाँ पे ले में NHM ऑफिस में हमारा एक टेली कंसल्टेशन हब है जहाँ पे गायनेकोलॉजिस्ट मैम भी बैठती हैं, 2-3 मेडिकल ऑफिसर्स बैठती है। तो ई संजीवनी के थ्रू, टेली कंसल्टेशन के थ्रू हम कम्युनिटी लेवल पे, ग्रास रूट लेवल पे उनकी कंसल्टेशन होती है, थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होती है या कभी, लेकिन उन जगहों पे ज़्यादा होती है जहाँ पे नेटवर्क कनेक्टिविटी अच्छी हो। अब इसमें हम क्या करते हैं कि आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर जो एक वुमेन फेस करते हैं उसको बहुत कुछ सोचना पड़ता है कि ले में जाके फैसिलिटी अवेल करें।
तो बहुत कुछ सोचना पड़ता है, तो इतना होता नहीं है, तो वो पीछे रह जाती है। तो उसको ओवरकम करने के लिए कम्युनिटी में हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर जाने में बहुत ईजी होता है, 10 कदम दूरी पे होती है। तो वहाँ से टेली कंसल्टेशन करके फिर वो वहाँ से डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन देंगे, फिर वहीं से प्रिंट आउट निकाल के, और जो मेडिसिन होते हैं ज़्यादातर वहीं पे अवेलेबल होते हैं मैम। तो उसको फॉलोअप भी अपर लेवल पे भी फॉलोअप होती है, ऊपर से फिर नीचे भी होती है फॉलोअप, उसको कंटिन्यूसली फॉलो करते हैं मैम। तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। तो डिजिटल जो टेली कंसल्टेशन अभी तक आज के डेट में पर मंथ अराउंड 2500 हो रही है मैम, और उसमें हर एज ग्रुप के हैं और दोनों जेंडर है, लेकिन इसमें अच्छी बात यह है कि 60% जो है वो फीमेल्स इसको अवेल कर रहे हैं मैम, वो है। बाकी फिर हम देखा जाएगा तो 108 एम्बुलेंस चल रहा है मैम। 108 एम्बुलेंस, हम सबको पता है कि लद्दाख में मैम रात वैसे भी यहाँ पे ना ऑटो रिक्शा टैक्सी सिस्टम ज़्यादा है नहीं, 10-11 बजे के बाद आपको ले सिटी में भी आपको टैक्सी मिलना मुश्किल हो जाता है। अब ये महिलाओं के लिए ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि उनको डिपेंड रहना नहीं पड़ता कि कोई हस्बैंड आके उसको घर से हॉस्पिटल के लिए लेके जाएंगे, या किसी की में गाड़ी नहीं होती है। और कभी एक्यूट एब्डोमेन केसेस आ जाते हैं, एक्यूट एपेंडिसाइटिस हो गया रात के 1-2 बजे तक, वो कहाँ जाएगी फिर, उसमें आपको 108 डायल करना है। तो इस तरह से बहुत सारे ऐसे फैसिलिटीज़ है मैम। जैसे फिर JSY कहा गया, जिसमें हमें स्पेशली फॉर प्रेग्नेंट वुमेंस के लिए हम डायरेक्ट बैंक ट्रांसफ़र करते हैं मैम उसमें बेनिफिशरीज को। अदरवाइज पेरिफेरीज में वुमेंस के पास ज़्यादातर लोगों के पास ना बैंक अकाउंट नहीं होती है, तो उस हिसाब से वो भी खुल जाता है उनका। फिर यहाँ पे आबा क्रिएशन होती है SNM हॉस्पिटल में मैम, हेल्थ ID होता है। एवरी इंडिविजुअल, हर इंडिविजुअल के पास एक हेल्थ ID होता है, जिसके थ्रू जाके हमें पूरा उसका डाटा मिल जाता है उसके हेल्थ रिलेटेड। तो ऐसे काफ़ी सारे हैं हॉस्पिटल रिलेटेड मैम, थोड़ा सा ही बताऊँगी। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच डॉक्टर इंचिल्ले। काफ़ी फ़ायदेमंद चीज़ें हैं जो हमारे पब्लिक को, खासकर लेडीज़ को, इन सब की जानकारी होनी बहुत ज़रूरी है। तो आगे बढ़ते हुए अब तक हम एट गवर्नमेंट लेवल, ब्यूरोक्रेसी लेवल, एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे डिजिटल टेक्नोलॉजी इंटरवेंशंस की बात कर रहे थे। तो अब मैं थोड़ा यहाँ से हट के अब ग्रास रूट लेवल की तरफ आती हूँ। यहाँ पे हमारे बीच विमेन रिप्रेजेंटेटिव हमारे बीच मौजूद है मैडम कुंजांगले, जो चिमरे गांव के सरपंच हैं। तो अचले मैं हम आपसे जानना चाहेंगे कि एज अ विमेन रिप्रेजेंटेटिव जो ये टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस जो हम कहते हैं, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स कहते हैं, उनकी वजह से आपको एज अ लोकल रिप्रेजेंटेटिव्स क्या फ़ायदे मिल रहे हैं और इनके थ्रू आप क्या फ़ायदा दे पा रहे हैं एट ग्राउंड लेवल? थैंक यू मैम रिंचनले, एंड हैप्पी वुमेंस डे एंड हैप्पी होली। मैं ये कहना चाहूँगी कि पंचायत जो अभी शुरू लगती है हमारे लद्दाख में, जैसे बाकी देशों के माध्यम से, तो हम यहाँ पंचायत में जो एक सरपंच के रूप में आके एक लेडीज़, जो पहले तो हमें लेडीज़ के लिए सीट नहीं होते हैं, रिजर्वेशन, अभी जितने भी लेडीज़ होता है हमें रिजर्वेशन की सीट से आई हुई। तो यहाँ पे आके मुझे खुशी ये मिल रही है कि लड़कियों को किस तरह से इम्प्रूवमेंट करना है, किस तरह से इनको फ़ायदा देना है। जैसे कि जिस तरह गवर्नमेंट ने उनके लिए, औरतों के लिए लॉन्च किया है, कई तरीके के लोन्स होते हैं कि गवर्नमेंट की तरफ से, बैंकों की तरफ से, जैसे कि मुद्रा लोन होता है, उसमें लेडीज़ को किस तरह की बेनिफिट मिलता है, वो सब लेडीज़ों को जिस तरह हम वैसे हर पंचायत अभी डिजिटली इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है, तो भी हम इंटरनेट यही मोबाइल के माध्यम से चला रहा है। तो इनके ज़रिए से हम जहाँ गवर्नमेंट तक ये सब जो गवर्नमेंट की तरफ से जो कुछ स्कीमें होते हैं उनको रिकनेक्ट करके हमारे जितने भी गाँव के लेडीज़ है उन तक पहुँचाने के लिए अपना जो व्हाट्सएप ग्रुप में लड़कियों का नंबर ला के, जो लोगों के नंबर ला के उनके लिए रखती हूँ। तो उन तक पहुँचाने के लिए मुझे फ़ायदा हो रहा है कि जिस तरह के लोन होता है, जैसे कि हमें एक लोन होते हैं स्टैंड ऑफ इंडिया, तो उसमें 10 लाख से हमें 50 लाख, 1 करोड़ तक भी मिल जाते हैं। उनमें लेडीज़ों के लिए अपना बिजनेस सेटअप करवाने के लिए, अपने वुमेन एम्पावरमेंट को आगे बढ़ाने के लिए, अपने गर्ल्स को चलाने के लिए, अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए, साथ ही साथ और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभी 2015 में हमें लॉन्च हुआ है। उससे बहुत से फ़ायदामंद होते हैं। जो बच्चों जब पैदा होते हैं 2-3 साल के बाद उसको खाता खोल के 15 ईयर्स तक उनको हमारा सेविंग करना है। 1 लाख, एक साल में 1,50,000 तक उनको सेविंग करना है। इसके बाद
18 साल के बाद उसको निकलना होता है, क्योंकि उसके एजुकेशन, अभी मैडम नीलम मिश्रा जी बता रहे कि एजुकेशन को बढ़ाने के लिए किस तरह के फ़ायदा होता है। वो सब हमें एजुकेशन बढ़ाने के लिए फ़ायदा होता है। जब बच्चे बड़ा होते हैं, 18 ईयर्स होता है, जो वो कॉलेज ज्वाइन करना चाहेंगे, यूनिवर्सिटी कॉलेज ज्वाइन करना चाहेंगे, तो उन पैसों को निकाल के उसको आगे पढ़ाने की मदद मिलती है। तो साथ ही साथ अगर वो पढ़ना नहीं चाहेगी तो बैठना चाहेंगे, 21 साल के दौरान वो निकाल के अपने मैरिज के लिए भी वो खर्च कर सकते हैं। तो मैं एक लेडीज़ होने के माध्यम से, तो अभी सोशल वेलफेयर की तरफ से हमें सेंट्रली मेरिट स्कीम में एक फंड्स होती है, वो लेडीज़ 35 से 40 तक के लिए 40 या 45,000 होते हैं। वो जो मैरिज करना भूल जाते हैं, किसी तरह से रह जाता है, उसके लिए फ़ायदा होता है। तो वो सब में इस जॉब डिजिटल की तरह से माध्यम से लोगों तक पहुँचने की मुझे बहुत सी फ़ायदेमंद होती है। थैंक यू। थैंक यू मैम ले। गर्व होता है हम लोगों को जब आप जैसे महिलाओं को एज पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव देखते हैं, और आप जैसे और भी महिलाओं की ऐसे पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म पे आने की बहुत ज़रूरत है। तो मैम बात करें अगर विमेन एम्पावरमेंट की, तो फाइनेंशियल एम्पावरमेंट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ इट। So we have a banker here, very young banker, Tanzin Dazisle. So Dazisle, हम आपसे जानना चाहेंगे कि टेक्नोलॉजी को लेके, डिजिटाइजेशन को लेके, फाइनेंशियल एम्पावरमेंट विमेन तक देने के लिए, एंड अदरवाइज ऑल्सो जो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स में फैसिलिटीज़ में इम्प्रूवमेंट्स हुए हैं उसके बारे में, और ख़ासकर लद्दाख जैसे रिमोट एरियाज़ में कैसे ये सब चीज़ें हो रही है और इनके फ़ायदे कैसे मिल रहे हैं। First of all, good morning everybody, and a very happy Women's Day to everybody, all the women in the world actually, and happy Holi ma'am. जैसा देखा जाता है, as studies suggest, women are better at finances than men. It is proven. So what happens, अगर हम women को घर में ही empower करें, अपने बैंकिंग या अपने फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को मेंटेन करने के लिए, so they tend to teach the children, they tend to teach the family members कि कैसे अपने finances को manage करना है. Now, what happens, women face a lot of constraints in the matter of movement, in the matter of socio-cultural values basically. Some women are not allowed to go to the house, some are restricted कि घर के बाहर मत जाओ, अकेले मत जाओ. So we as banks, हम क्या करते हैं, हम एक digital platform provide करते हैं women को, not exclusively for women but for everybody, कि आप banking घर से ही कर सकते हैं. So क्या होता है कि they don't need to depend on anybody कि उनके finances कोई और manage करे, वो खुद manage कर सकते हैं. I like to discuss some digital platforms जो banks provide करते हैं और जिनमें women का बहुत फ़ायदा होता है अपने finances manage करने के लिए. सबसे important तो I think everybody knows, this is the ATM. If you have a saving bank account, you are given an ATM, आपको बैंक में जाने की ज़रूरत नहीं है. आप अपने पैसे कहीं से भी निकाल सकते हैं. You don't need to ask somebody to accompany you कि बैंक में चलो, या अगर बैंक दूर हो आपके घर से, especially for rural women के लिए, जिनके लिए जाना बहुत मुश्किल होता है, अगर ATM available है तो आप निकाल सकते हैं. In Ladakh, JK Bank has around 53 ATMs. So we have a good coverage. Women don't need to, जबकि हमारे पास 37 banks हैं, branches हैं यहाँ पे. Sorry, women don't need to go to places. I mean, don't need to go to banks to take out money. Secondly is मोबाइल बैंकिंग. मोबाइल बैंकिंग में क्या है कि आप हमारा ऐप डाउनलोड कीजिए, JK Bank MP Delight, और अपने सारे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस आप खुद कर सकते हैं. आपको इतना ज़्यादा टेक savvy होने की ज़रूरत भी नहीं है, बिकॉज द ऐप इज़ वेरी यूज़र फ्रेंडली. आप पैसे भेज सकते हैं, फंड्स ट्रांसफ़र कर सकते हैं, अपने फिक्स डिपॉजिट्स कर सकते हैं. सम पीपल डोंट वांट टू रिवील देयर फाइनेंशियल स्टेटस, तो आप खुद अपना कर सकते हैं, बैंक में जाने की ज़रूरत नहीं है. देन देयर इज़ इंटरनेट बैंकिंग. इंटरनेट बैंकिंग में अगर आपके पास लैपटॉप है, टैबलेट है, फ़ोन है, एक यूज़र ID पासवर्ड के साथ आप जैसे कि मोबाइल बैंकिंग में देयर इज़ अ लिटिल रिस्ट्रिक्शंस ऑन द लिमिट. इंटरनेट बैंकिंग में क्या होता है कि वी गिव यू अ हायर लिमिट, तो बैंक में जाने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद ही अपने ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं. ये बेसिकली फेवर करता है विमेन एंटरप्रेन्योर्स को ज़्यादा. ठीक है. देन वी हैव आधार बेस्ड पेमेंट्स. Very important is Aadhaar based payments, because what happens right now, as ma'am was talking about DBT and all,
There are a lot of rural women who are not able to go to the banks or who are not very well educated, और उनके wages आते हैं, agricultural wages आते हैं या उनके बच्चों के scholarships आते हैं, तो हम इंश्योर करते हैं अपनी तरफ से, बैंक की तरफ से, कि उनके अकाउंट्स उनके आधार के साथ लिंक्ड हो. We also had this financial literacy camp. We also have a lot of financial literacy camp actually. जिसमें क्या होता है, we have banks spread out all over Ladakh. So there are a lot of rural areas जहाँ पे women can't be a part of these financial literacy camps क्योंकि घर से थोड़ा दूर होता है, आ नहीं पाते हैं, men ज़्यादा आते हैं उन सब में. तो हम अपनी तरफ से इंश्योर करते हैं कि हमारे स्टाफ वैसे एरियाज़ में जाएं जहाँ पे women आ नहीं सकते बट हम जा सकते हैं उनके वहाँ पे. हम उनको लिटरेट कराते हैं उनके बैंकिंग फाइनेंसेस की वजह से, कैसे वो मेंटेन कर सकते हैं, कैसे वो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को यूज़ कर सकते हैं. अभी तो आई डोंट थिंक women नीड टू बी वेरी टेक्नोलॉजी savvy टू रन द फाइनेंसेस, बिकॉज द गवर्नमेंट इज इवन अनाउंस्ड कि यू डोंट इवन नीड इंटरनेट. UPI बेस्ड पेमेंट्स करने के लिए फ्यूचर में आपको इंटरनेट की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी. यू विल बी एबल टू डू इट इन अ सिंपल फ़ोन. इफ़ योर फ़ोन नंबर इज रजिस्टर्ड विद योर अकाउंट, आप वो भी कर सकते हैं. So, yes, this is, oh yeah, exactly. I want to mention one more thing. Past 1 month, we've been having this Women's Day campaign हमारे बैंक में. And we ensured कि we, first of all, we figured out कि कितने, जैसे कि हमारे ले region में we have around 95,000 accounts, जिसमें around 46,000 accounts are women के. So, we figured out कि 26,000 है उसमें who are digitally savvy. ठीक है, बाकी लोग नहीं हैं. तो हमने जो बाकी लोग था, विद इन अ मंथ हमने ले और कारगिल का सारे जोन का निकाला कितने नहीं हैं, और हमने टारगेट किया कि एटलीस्ट एक डिजिटल प्लेटफॉर्म उनके पास होना चाहिए. सो वी इन अ मंथ वी कवर्ड अराउंड 5,000 वुमेन, जिनको हमने एटलीस्ट एक डिजिटल प्लेटफॉर्म दिया कि वो जिसके थ्रू अपना वो फाइनेंसेस मैनेज कर सकते हैं. थैंक यू सो मच मैम. थैंक यू. Thank you so much, Tajis. That's wonderful information. And it's nice to have you here amongst us. So आज अब तक हम बात कर रहे थे कि डिजिटल टेक्नोलॉजी के फ़ायदे क्या है. Now we have a very young scientist here. She's Gilza Angmo, Assistant Director IT from NIC Le. So ये इन टेक्नोलॉजीज़ पे काम करते हैं, ये टेक्नोलॉजीज़ हमें आगे देते हैं. So इनसे हम जानना चाहेंगे कि इन गवर्नेंस फ्रॉम योर एक्सपीरियंस किस तरह से ये टेक्नोलॉजीज़ डिजिटाइजेशंस की एप्लीकेशन क्या रही है, इनके बेनिफिट्स क्या रहे हैं. जुले, सबसे पहले तो मैं इस महिला दिवस के इस शुभ अवसर पे सभी महिलाओं को शुभकामनाएं देना चाहती हूँ. और बीइंग फ्रॉम एन IT बैकग्राउंड, सबसे पहले तो मैं छोटा सा वो बताना चाहती हूँ कि IT वुमेन के लिए कितना इम्पॉर्टेंट है. सबसे पहले तो IT ही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो किसी व्यक्ति के लिंक के आधार पर उसके काम करने की क्षमता को नहीं देखती. ये एक फ्लेक्सिबिलिटी देती है हर किसी को कि वो कैसे भी काम करना चाहते हो. जैसे कि मैम ने अभी बताया कि वर्क फ्रॉम होम, फ्लेक्सी आवर, पार्ट टाइम जॉब, ये सारे विमेंस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है. ये उन महिलाओं के लिए तो और भी बहुत इंपॉर्टेंट है जो अपने परिवार को और अपने करियर को इक्वली साथ में लेके चलना चाहते हैं. तो इनके लिए IT एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है. उसके बाद हम आते हैं IT गवर्नेंस में. मैं बहुत प्राउडली ये कहना चाहूँगी कि जैसे मैम ने अभी DBT स्कीम्स के बारे में बोला और E-ऑफिस के बारे में बोला, वो सारा हमारे NIC ही इम्प्लीमेंट करते हैं. NIC एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है, ऐसा एक IT डिपार्टमेंट है जो कि जितने भी गवर्नमेंट के स्कीम्स हैं उनको इलेक्ट्रॉनिक वे में लोगों तक पहुंचाने के लिए NIC काम करती है और IT कंसल्टेंसी भी देती है गवर्नमेंट को. तो मैं बहुत प्राउडली ये सब सुनने के बाद मुझे थोड़ा और भी प्राउड फील हो रहा था कि मैं उसके साथ जुड़ी हुई हूँ, डिपार्टमेंट के साथ जुड़ी हुई हूँ. और अब मैं अगर कुछ ये बताना चाहूँ कि वुमेन का कैसा रोल है NIC में और या IT के क्षेत्र में, तो अभी मैं बहुत उससे कहना चाहूँगी कि IT में आजकल तो बहुत सारा एडवांसमेंट हुआ है. सारी लाइक महिलाओं को ये पता लगा है कि IT बहुत इंडिपेंडेंटली एक वुमेन को काम करने का अवसर देते हैं. इसलिए बहुत सारे अभी महिलाएं और मतलब गर्ल आ रहे हैं, पर फ़िलहाल के लिए बहुत कम है.
हमारे ही डिपार्टमेंट में हम सिर्फ 2 ही अभी लड़की हैं जो डिपार्टमेंट में हैं और ज़्यादातर मेल ही डोमिनेंट हैं। तो मैं चाहूँगी कि ये मेल डोमिनेंसी को थोड़ा उसको जेंडर स्टीरियोटाइप और गैप को हम डिमोलिश करके थोड़ा लड़कियों को भी थोड़ा इक्वली अवसर दें कि ऐसे प्लेटफॉर्म पे आएँ। तो इसके लिए हम सबको ग्रास रूट लेवल से काम करना चाहिए। ये मैं बताना चाहूँगी कि स्कूल लेवल से ही उनको शिक्षित करें, स्कूल लेवल से ही उनको बताएं कि आईटी के इम्पोर्टेंस क्या है, ताकि ऐसे फील्ड में लड़कियों का ज़्यादा प्रभाव रहे। थैंक यू। Thank you so much. Well said. Okay, so after hearing to all this wonderful views, नीलम मैम, हम आप पे वापस आना चाहेंगे। आपके इम्प्रेशंस जो रहे हैं अब तक इन बातों से, और ख़ासकर एक बात और मैम, जितने भी हमारी मतलब पर्सनली जो मेल्स इंटरेक्शंस हमारी रही है, तो व्हेन एवर वी टॉक ऑफ विमेन एम्पावरमेंट, तो जो मेल काउंटर पार्ट का जो उनका स्टेटमेंट रहता है मैम, लड़कियां बोल बोल के लड़कियों को ये अवसर दो, वो अवसर दो, तुम लोग और भी डिमीन कर रहे हो लड़कियों को। दे डोंट नीड सो मच रिकग्निशन, जैसे लड़के आ रहे हैं वैसे लड़कियां भी आएंगी। सो इवन ऑन दैट आप कुछ, इफ यू थ्रो सम लाइट ऑन दैट। अभी सबको पैनलिस्ट को सुन के बहुत अच्छा लगा, सब लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इसके लिए इन सबको बधाई कि आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं। पर जैसे मैंने पहले बोला था मुझे रोड मैप भी चाहिए, तो उसमें सिर्फ बैंक की जो रिलेटेड है उन्होंने बताया कि कितनों को उन्होंने दे दिया है, पर बताया नहीं टारगेट क्या है। सो आई विल लाइक टू हैव दैट ऑल्सो फ्रॉम ईच वन ऑफ यू कि आगे का टारगेट क्या है। एंड एज शी वाज सेइंग कि लड़कियों को बोल के, वो उतना मुझे नहीं लगता है कि हम बोलेंगे तो लड़कियों का डिमीन कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। हम उनको इनकरेज कर रहे हैं, इंस्पायर कर रहे हैं। पर एज शी वाज सेइंग कि और विमेन होना चाहिए एनआईसी में। सो इन कमिंग फ्यूचर I think we will have more house husbands than housewives because they will lose their jobs. So it doesn't matter because there is a balancing between husband and wife. तो कोई भी अर्न करता है तो उससे इतना हमको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। Till the time our coming generation is benefited from us, there we should not worry about that. And I will say that instead of thinking कि हमको एक लड़की को देना ही है, the girl should be capable of that job. We should not take a girl just because she is a girl. We should give her a job when she is capable of doing that. उसके पास मेरे पास बहुत छोटा सा एग्जाम्पल है कि I was related with the LPG distribution also. So there if I employ a girl for picking up the cylinders and going and delivering it, it won't be possible. So we have to see the capability. If a girl is strong enough, she is doing, like in petrol pump, it is very common because there it is not so much of physical labor is required. And being a woman, at times we are not so physically strong. The God has not made us. Our biological requirement or biological physical status is different than a man. So we should take a girl when she is capable, just not because she is a girl. That is my intake. And I will like to here mention, I was very happy that all the aspects of life has been taken over here, and digitization is playing very important role in that. Our basic needs are roti, kapda, makan, and we add into that Shiksha, Suraksha, and Swasth. And in that one, almost everything is possible by digitization. Like, first of all, Roji, you have said that e-working hours for women. It is not only for women, e-offices for men also. Corona period has proved that. And then cloth you are buying online, most of you. So you are again using digital platform for that. Then for house also, I will say, if we are sitting here in our own house, it is okay. But suppose you plan to go for 1 month from office requirement or anything, means not for government offices, because mostly you are provided with whatsoever accommodation you get. But if in a private, you have to many times arrange for yourself. So online, you can pick and choose closer to your place of working. Then these 3 requirements are over. And most important, Shiksha, Suraksha, and Swasth. That has been covered. The education is such an important. And I know
many of you must be knowing, even for primary education, you can have online. There is a platform, online schooling is there. Though they are new, they are planning to get it CBSE certified, because what they are doing that till 6th, 7th they teach, and then you go for open school examination. But they are trying that if it is recognized by CBSE, then they can directly give exam. So from primary, because I know somebody very close whose child was asthmatic, and the child was having lot of problem in school, because he will fall sick, or while running he will fall down. So during COVID, it was a boon for him. When schools closed, then they were doing online classes. His health improved, and he started lot of extracurricular activity, like he's learning tabla, he's going on Sanskrit classes also along with that. So with that, you know, when the COVID over, that lady, she did not admit her child to regular school, because she thought lot of disadvantage the child had due to his health. So now he has joined online primary classes. He's in class 3rd or 4th, and he's doing quite well, and his personality has improved. So this is about the education. And Suraksha, of course, is very important for all human beings. Anybody can be trapped anywhere, wrong time. But for women, it is more. So if you have a mobile with you, you can really attend to anything. You can call for police, you can record it, and later on complain. That is also possible. And Swasth, of course, she has given enough input. I will like her to open more such clinic in rural area where more women are benefited. Thank you very much. Rinchan, I would just like to add few things. क्योंकि हम लोग अभी डिस्कशन कर रहे थे इंटरवेंशंस के बारे में, कुछ डेटा आई थिंक आई नीड टू शेयर विद द ऑडियंस यहाँ पर एंड लाइव में ऑल्सो. देखिए, इंटरनेशनल टेलीकॉम यूनियन, उनका जो डेटा है उसके हिसाब से 63% ऑफ वुमेन हैव एक्सेस टू इंटरनेट, अगेन 69%, दैट इज़ ग्लोबल. अनदर रिपोर्ट से इस इंडिया में मैम 30% वुमेन हैव एक्सेस टू मोबाइल इंटरनेट कंपेयर टू 50% मैन. लद्दाख का हमारे पास कोई स्पेसिफिक डेटा, रिलायबल डेटा नहीं है, बट हम लोगों का जो मैम सोशल मीडिया एनालिटिक्स जो हम लोगों ने कराया पिछले 1 साल में, अराउंड अप्रॉक्सीमेटली 1 लाख यूजर्स ऑन सोशल मीडिया में 80% आर मेल कंपेयर टू ओनली 20% में फीमेल इन लद्दाख, जहाँ पे वी हैव अ वेरी एम्पावर्ड सोसाइटी. वी हैव टू रिमेंबर कि द वर्ल्ड इज इंक्रीजिंगली गोइंग डिजिटल. हमारा, जैसे मैडम बताई थी, सब कुछ आजकल हम डिजिटल प्लेटफॉर्म पे कर रहे हैं. An important study by UN Women says 44% of artificial intelligence systems which were analyzed, 133 artificial intelligence systems which were analyzed, 44% demonstrated gender bias. तो ये नहीं है कि as we are discussing कि technology is gender agnostic, but issue is 22% जो workforce है artificial intelligence में, they are female, only 22%. So automatically जो gender biases आ रहे हैं, it is based upon the workers who are there. तो मैम इसलिए ज़रूरी है हम लोगों का किसी भी इकोसिस्टम को वुमेन के लिए फ्रेंडली होगा व्हेन वी आर वेरी एक्टिव ऑन दैट इकोसिस्टम. जैसे फिजिकल हम वी लुक एट सिक्योरिटी, वी लुक एट कन्वीनियंस. सो अगर द वर्ल्ड इज गोइंग डिजिटल, वी हैव टू एंश्योर कि उस डिजिटल स्पेस में वुमेन रहें एज अ यूज़र. नाउ वी हैव लॉट्स ऑफ एंटरप्रेन्योर्स हू आर यूजिंग दिस प्लेटफॉर्म, बट ऑल्सो एज the creators of that ecosystem. That is why NILSA का जैसे यहाँ पे रोल है, NIC में we have 2 women engineers, which is very good. Across the country, STEM field में लड़कियाँ बहुत कम है. So ma'am, you are asking about targets. So हमारा target ये है, Government of India का भी and as department also, कि more and more girls come on this ecosystem by in the construction of this digital ecosystem. Ma'am, STEM जैसे हम कहते हैं, science, technology, engineering, mathematics, इसमें girls बहुत कम है. So ये requirement है जो हम कह रहे हैं कि डिजिटल लैब्स जो स्कूल्स में खुल रहे हैं मैम, वी आर ट्राइंग टू प्रमोट मोर गर्ल्स हु कैन कम इनटू दिस साइंस फील्ड. क्योंकि अगर वो आएंगे, वो ये डिजिटल इकोसिस्टम बनाएंगे, दे विल बिल्ड इट इन अ वे विच इज़ फ्रेंडली टू वुमेन, एंड दैट विल एनकरेज मोर वुमेन टू यूज दिस इकोसिस्टम फाइनली, बिकॉज वर्ल्ड इज गोइंग टू बी डिजिटल. इट्स ऑलरेडी डिजिटल एंड इन नियर फ्यूचर इट विल बी इवन मोर डिजिटल. ऑन दिस वन आई विल लाइक टू से कि सबसे आसान तरीका है कि अगर मेरे पास मोबाइल है और हमारे नेबर में कुछ लेडीज़ हैं जिनके पास नहीं मोबाइल है, तो हम उनको बात करके बोल सकते हैं कि आपको क्यों नहीं रखते हो इसको, अगर आपको ज़रूरत पड़े तो आप प्लीज़ मेरा यूज़ कर लेना. उससे उनको थोड़ा सा इनिशिएटिव होगा, थोड़ा इंस्पिरेशन होगा कि अभी, बिकॉज आई एम नॉट वेरी फ्रेंडली विद, लाइक व्हेन आई हैड टू यूज़ मोबाइल फ़ोन, आई डिडंट वांट अ स्मार्टफोन इनिशियली, पर वो एक टाइम आया कि वो ख़त्म ही हो गया, पुराना स्मार्टफोन ही अवेलेबल था. सो आई लर्न इट, तो बिकॉज माई
चिल्ड्रन हैड. तो अगर उससे थोड़ा सा हमको डर लगता है कि आज मैं 10,000 रुपया खर्च करूँगी तो हमको फ़ायदा नहीं है, आई विल नॉट बी एबल टू मैनेज इट, तो वाई शुड आई स्पेंड. पर अगर मैं आपको दे देती हूँ अपना फ़ोन और बोलती हूँ आप करके देखो ना, अपनी बेटी को फ़ोन करके देखो ज़रा, वो हॉस्टल में है, तो वो बहुत खुश हो जाएंगी कि मेरी बेटी से बात हुई, और फिर शी विल ट्राई कि मैं पैसे बचा के सबसे सस्ता वाला एक खरीद लेती हूँ, कम से कम मैं अपनी बेटी से बात कर सकती हूँ. थैंक यू. थैंक यू मैम. तो जैसे मैं पहले बात कर रही थी कि जो इंटरनेट है या डिजिटल प्लेटफॉर्म है, इसका यूज़ और मिसयूज़ दोनों हो सकता है. सो वी हैव अ क्वेश्चन, बट नाम नहीं आया जिनका है, मैम पद्मा के लिए. सो वेयर मैम एक मॉनिटरिंग सिस्टम, जैसे आपने कहा कि नॉन वर्किंग आवर्स विमेन एट होम भी हम थ्रू ई ऑफिस दे सकते हैं. सो हाउ यू वुड कीप अ मॉनिटरिंग कि कहीं वो मिसयूज़ ना हो रही है वो जो बेनिफिट आप दे रहे हो? देखिए, एक टाइम था जब हम कहते थे इंटरनेट यूज़ है ऑफिस में, आप किस चीज़ के लिए इंटरनेट यूज़ कर रहे हो. नाउ आई थिंक इंटरनेट फ्रैंकली इज़ इजीली एक्सेसिबल, इट्स नॉट वेरी एक्सपेंसिव ऑल्सो. सो अगर हम इंटरनेट फैसिलिटी मैम किसी वर्किंग ऑफिशियल को दे रहे हैं, अगर वो उसमें थोड़ा SMS भी कर रहा है, आई डोंट थिंक इट इज़ अ बिग इशू फ्रैंकली, बिकॉज डेटा हैज़ बिकम वेरी चीप. मिसयूज़ अगर आप अदरवाइज कह रहे हैं, मिसयूज़ फॉर साइबर बुलिंग और समथिंग, वी हैव द साइबर सेल्स. So police, they run the cyber cells. There's a whole cell which is looking after these kind of misuse of social media. बाकी data का I don't think it's an issue. I don't mind all my staff using data. वर्किंग आवर्स कह रहे हैं मैम, जैसे एक एम्प्लॉय है वो she wants to work from home as the leverage that you want to give, तो उस पे मॉनिटरिंग किस? देखिए ऐसा है कि ई ऑफिस में एवरीथिंग इज मॉनिटर्ड. कितने फाइल्स मेरे पास आ रहे हैं, कितने प्रपोजल्स हैं which is coming up, वो तो डेटा में आ ही जाता है. सो दैट आई डोंट सी मच ऑफ ए मिसयूज, एंड दैट इज डिपेंड्स अपॉन द ऑफिसर. अगर आउटपुट अच्छा है एंड द लेडी इज वर्किंग फ्रॉम होम एंड आई एम हैप्पी विद द आउटपुट, आई थिंक आई विल गो फॉर इट. वैसे अदरवाइज I think NIC would be I think that has answered the question that has come online from our audience. So before Nilza, you say, okay, sure ma'am. Then if as an officer you are working on e-office, you must put your password so that your children or any other member should not misuse it. You must use a password to open it, because it is given to you for office work. You can use it for your bank transaction, you can use for talking to a friend, sending a message, but make sure that it is not misused by others. You are solely responsible for that. Thank you. एग्जैक्टली लाइक मैं यही मैम ने मेरा वो बोल दिया, यही मैं बोलना चाहती थी कि जब मॉनिटरिंग की जब बात होती है, जब ट्रेडिशनल मेथड में भी तो सेव नहीं है. जब हम एक कॉन्फिडेंशियल फाइल को मूव करते हैं तो क्या हम श्योरिटी देते हैं? जब हम थर्ड पर्सन के थ्रू ही हम मूव करते हैं, तो ये जो पेज है तो ये टेयर अप हो सकता है, या कहीं खो सकता है, या कहीं जल सकता है, कुछ भी हो सकता है. डेटा तो तब भी इस फॉर्म में सेव नहीं था ना, बट इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में क्या होता है, ये थर्ड पर्सन का जो वो होता है वो बिल्कुल ही हट जाता है. वो डायरेक्ट उसी पर्सन को मिलता है जो वो फाइल उस पर्सन के लिए इंटेंडेड होता है. तो सिक्योरिटी के इस उसमें तो ई ऑफिस पे या इस इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म पे ज़्यादा सिक्योर है. Thank you, Nilza, for that add-on information. So we have one question from Mr. Ashik Hussain to Dr. Rinchinle. तो उन्होंने पूछा है मैमले कि अभी भी अगर गांव में देखें तो गांव में लोगों को information नहीं है about certain diseases or health schemes. And there are certain misconceptions also, कुछ बीमारियों को लेके. So in that line, what health sector is doing, and to add to that, how digitally you are trying to reach or address those issues? थैंक यू आशिक, आपने अच्छा सवाल रखा है. मैं इसमें एक बात इसी प्लेटफॉर्म से बोलना चाहती हूँ कि जब भी, जैसे मैंने आपको पहले ही बोला कि कम्युनिटी लेवल में रिमोटेस्ट एरिया में भी जैसे हमने एक CHO को रखा है, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर को, तो वो कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर जो है वो आजकल के जनरेशन के छोटे छोटे बच्चे होते हैं, है ना, अभी जस्ट ग्रेजुएट करके वो आई होती है, उनको ट्रेनिंग दिया होता है. तो कम्युनिटी में भी एक बार ना, जैसे वो अवेयरनेस हर टाइम पे अवेयरनेस होती रहती है इसमें. हेल्थ एजुकेशन जैसे नेशनल प्रोग्राम्स इतने सारे हैं, हेल्थ प्रोग्राम्स इतने सारे होते हैं, बस कम्युनिटी में थोड़ा सा एक्सेप्टेंस की ज़रूरत है. क्योंकि कम्युनिटी में लोग जब स्टाफ जाते हैं, उनको लगता है कि ये छोटे से बच्चे आए हैं, इनको कुछ पता है कि नहीं है, थोड़ा सा वो सुनते नहीं है इसमें.
तो मैं आज सरपंच के थ्रू भी ये मैसेज देना चाहती हूँ कि कम्युनिटी में आप लोगों का ज़्यादा रोल होता है उनको समझाना। तो बेसिकली हेल्थ अवेयरनेस हम जब भी देते हैं, जब भी हम हेल्थ एक्टिविटी करते हैं, तो हमेशा कम्युनिटी लेवल के जैसे सरपंच हो गया, पंच हो गया, इन सब का इन्वॉल्व होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है ताकि अच्छे से मैसेज कन्वे हो जाए। थैंक यू डॉक्टर ले। सो अगर ऑडियंस में से किसी को क्वेश्चन होगा तो वी वुड लाइक टू टेक क्वेश्चन फ्रॉम द ऑडियंस। हेलो 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 गुड आफ्टरनून ऑल। तो मेरा क्वेश्चन है मैम दर्जेस के लिए, if a woman wants to avail housing loan, what are the scheme that a bank is providing to help women? Okay. We don't have any exclusive housing loan for women, but हमारे लोन्स में वी हैव रिबेट्स फॉर वुमेन। बेसिकली क्या होता है कि जो नॉर्मल इंटरेस्ट रेट होता है उससे थोड़ा कम हम वुमेन को चार्ज करते हैं। और बेसिकली डॉक्यूमेंट्स तो दैट इज़ अ लेंथी प्रोसीजर। इफ़ यू वांट मी टू टेल दैट आई विल टेल यू दैट आल्सो। इज दैट ओके? Okay ma'am. ओले ओले। Thank you. Thank you. First of all, happy Women's Day to all. So it's me, Tsewang Lamo, a student of AGM College. So my question is to Ma'am Kunzesle. In Ladakh, women are hesitate to participate in politics. You can really see our women in politic platform. So what is the reason behind it? I want to know, Ma'am. अच्छा, थैंक यू। जो वुमेन्स पॉलिटिक्स में काम होने के कारण एक तो सबसे पहले लड़कियों एकदम से शर्म आती, इसलिए नहीं आती। दूसरी बात ये है हमारे लड़कियों के आने की चांस कहाँ है, अभी हमें चांस ही कहाँ मिलते। जब हमें रिजर्वेशन सीट मिलती तो आ सकती, नहीं तो कहाँ आने देते। यही है हमारे लिए। तो साथ ही साथ थोड़ी बहुत लड़कियों के पास फाइनेंशियली पहले कमज़ोर होती, अभी तो फाइनेंशियली कमज़ोर नहीं होती। आना चाहूँगी भी, उनके लिए रिजर्वेशन सीट होता तो वो आ सकती है, नहीं तो रिजर्वेशन सीट के बिना आना मुश्किल होता है। यही है मेरा क्वेश्चन। मैम ले इसी पे ऐड करते हुए, वेन एवर इट कम्स टू पॉलिटिक्स लद्दाख में हमने देखा कि हम बोलते हैं कि लड़कियों को, विमेन को रिजर्वेशन नहीं है टू कम इन टू पॉलिटिक्स। लेकिन जितने भी इलेक्शंस हुए हैं, फ्रॉम माय एक्सपीरियंस जो हमने देखे हैं, जब कोई लड़की नॉमिनेट होती है या एक इलेक्शंस में खड़ी होती है तो उसको विमेन वोट ही नहीं मिलता है, क्योंकि विमेन खुद बोलते हैं कि लाइक वो मेल को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। सो इज दैट अ माइंडसेट स्टीरियोटाइप? और हाँ, हेलो, मेरा कहना ये है, एज आई सेड अर्लियर, कि फर्स्ट इज़ योर कैपेबिलिटी। तो आप उसके लिए, दैट यंग गर्ल, आई लाइक टू से, कीप ऑन लिसनिंग टू स्मृति ईरानी एंड यू विल गेट मोटिवेटेड। थैंक यू। मैं हमने क्वेश्चन बोलना चाहिए मोल्स कर ले। हाँ, यही है। मैं पहले तो महिला एक यूनिटी नहीं होती है, ये होना ज़रूरी है कि एक महिला के ऊपर महिला ही जलती है। ऐसे बात नहीं कि वही तो मैं बोल रही हूँ। ये तो रियल है, ये एक रियल है। मेरे ऊपर, खुद के ऊपर ये बीत गई है। मैं ऐसे अपने एक्सपीरियंस के मुताबिक मैं बोल रही हूँ। मैं एक ही हूँ, तो एक ही सरपंच चुना, मैं काउंसलर नहीं हूँ। तो सरपंच क्या होती है, सिर्फ ग्रास रूट लेवल पे काम करती है, लोगों की सुनना, लोगों की धक्का मुक्की करना, वही होती है। कोई उसके लिए कोई अच्छा सा कोई ऑनरेरियम कोई सीट नहीं होती है, तो भी ग्रास रूट लेवल पे काम करती है। उसमें ज़्यादातर क्या करती है, लड़कियों लोग हमारे ऊपर जलना शुरू हो जाती है, क्योंकि मेरे ऊपर मैं अपने एक्सपीरियंस के मुताबिक से मैं बोल रही हूँ। तो मैं सरपंच बनने से पहले मैं अपने गांव में बहुत से सोशल वर्क करती थी। तो इसके कारण मैं यहाँ आज आपके लोगों के सामने होगा, तो वही सोशल वर्क के कारण मैं हूँ। तो इसलिए मुझे वहाँ से सपोर्ट मिल रही थी। उस वक़्त मर्दों का भी मिल रही थी, औरतों का भी मिल रही थी।
तो बाद में मुझे प्लेटफॉर्म मिला सरपंच की, तो उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद फिर से लड़कियों में भी थोड़ा बहुत जेलोसी फील होता है, लड़कों में तो आता ही आता है। एक लड़की हेट करेगा, उसको कमेंट करेगा, हम लोग यहाँ नीचे बैठ के उनके बात क्यों सुनो, उनका कमेंट हमें, उनका लीड अच्छा नहीं लगती। इसलिए क्या होती है, मेरे एक्सपीरियंस यही है, मेरे ऊपर उन्होंने, हमारा पंचेस होता, उन्होंने नो कॉन्फिडेंस मोशन ली थी। आज मेरे पास यही फ़ोन नहीं होती है, जो ये फ़ोन नहीं होती है, आजकल की इंटरनेट नहीं होती है, ये अभी हमारा डिजिटल टेक्नोलॉजी अगर नहीं होती तो आज के डेट में मैं यहाँ नहीं होती। क्योंकि मैंने जितना भी उनके मेरे खिलाफ किया वो मैंने रिकॉर्डिंग करके लोगों को सुनने के लिए दिया। तब उनके लिए खुद उन्होंने मुझे सजेस्ट रखे थे, खुद को रिज़ाइन देना पड़ा। तब उन्होंने क्या पता कहीं से फिर से रिज़ाइन डिज़ोल्व करके फिर आ गई, फिर से ये हंगामा शुरू करना करती। एक लड़की ऐसा होते हैं जो गांव अपने घर किस तरह से संभालती है, इस हिसाब से अपने गाँव को संभालना, अपने लोगों को जितने भी इर्द गिर्द के औरतें हो, जो पुअर्टी हो, जो ओल्ड एज हो, जो डिसेबिलिटीज़ हो, जिसको कोई पता नहीं हो, उसको संभालना एक लेडीज़ लीडर को अच्छी तरह से पता होती है। क्योंकि उसको पता होती है कि अपने घर किस तरह से चलाते हैं। जब एक लेडीज़ अपना घर चला सकती तो लोगों के काम चलाना मुश्किल नहीं होते। वो तो हम गवर्नमेंट की जो सहायता लेते फ़ायदा लेते हैं, हमारे ऊपर एक क्या कहते हैं, अपना एक सेक्रेटरी होते, वो काम चलाती, हम सिर्फ ऑर्डर देते हैं। तो ये बात नहीं कि हम नहीं आ सकती। आप लोगों में से इतना यंग जनरेशन, बहुत से लड़कियां एजुकेटेड, वेल एजुकेटेड है, आने वाले 2024 में आप लोग इलेक्शन के लिए खड़ी हो जाइए, क्यों नहीं, आप लोग आ सकती है ना सर। जो एमपी में आ जाए आप, हिल कौंसल अभी देखिए, हमारे हिल अभी बोलती कि हमारे लेडीज़ लोग कहीं भी जाते, जहाँ यहाँ से लद्दाख से भर जाते हैं, वहाँ जाके हम लोग कहते हैं हमारे लेडीज़ लोग बहुत सी इम्पावर में नहीं, बहुत से कुछ कर सकती। वहाँ एक क्वेश्चन पूछते आप लोगों के, वहाँ एक लोकल गवर्नमेंट से, उसमें आप लोगों का कितना सीट है पूछेगा, तो वहाँ हमारा कोई सीट नहीं है, सिर्फ नॉमिनेट होता है। नॉमिनेट तो ये कोई है ही नहीं, कोई इलेक्टेड है नहीं। हमारे वहाँ कौन सा इलेक्टेड वुमेन्स क्या काउंसलर है नहीं ना। वही तो हमें थोड़ा आगे चलना पड़ेगा, क्योंकि ये सब को पीछे दबा के, क्योंकि अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना के, क्योंकि पॉलिटिक्स कहते हैं कि पॉलिटिक्स गंदे हैं। अगर गंदे तरीके से खेलेगा तो पॉलिटिक्स गंदे, अच्छी तरीके से खेलेंगे तो पॉलिटिक्स अच्छे। जो पार्टी लोग उनको फ़ायदा देने के लिए हमें लेडीज़ जैसे जितने भी लेडीज़ है वो लोग हम कर सकती है। अभी 5 सरपंच का इलेक्शन आने वाला, आप लोग खड़ी हो जाइए। बेडीसीज का इलेक्शन आने वाली है, उसमें खड़ी हो जाइए। अभी काउंसलर का इलेक्शन होने और उसमें आप लोग पार्टिसिपेट लीजिए। पार्टिसिपेट लेने में कोई शर्म नहीं है। जो हारना या जीतना वो हमारे वो नहीं है, वो हार या जीत किसी का होता ही होता है, उसमें शर्म नहीं है। Thank you, Achilya. Very well said. Round of applause for her, ladies and gentlemen. तो नारी शक्ति का इन्होंने रूप दिखा दिया, एंड दिस इज़ ट्रू। फीमेल्स को हमें अपने जगह पे वी नीड टू मेक अ रिजॉल्व टू स्टैंड यूनाइटेड एंड स्टैंड बाय ईच अदर फॉर आवर ओन एम्पावरमेंट एंड नॉट ब्लेम और डिपेंड ऑन आवर अदर जेंडर काउंटर पार्ट। सो मैम, I would like to add in on this topic, because as a district office, we conducted a workshop on gender equality in politics recently during this week only. So during the discussions, the participants were women representatives at the ground level in Panchayat and Municipal Council. So the point that ma'am has said that women are not supporting the other women who are being who have जो अपने से आगे आए हैं। तो उसमें मैं ये कहना चाहूँगी कि the maturity to support the other women, because women are not in this field since a long time, and to accept a woman leader in that field will take a long time. And women as a leader क्यों नहीं आ रही इस फील्ड में? There are many reasons behind that. We cannot say one reason. And those reasons I have made a report, and I request Commissioner Secretary ma'am to accept the report, because after discussing in the workshops, we have concluded many reasons. We have also come up with some solutions. So I will request Commissioner ma'am to accept that report after this function. Yeah, and along with ma'am, we are submitting the report to DC Deputy Commissioner Leh and also to CEC LHDC Leh. Thank you.
थैंक यू नीलजा। जैसे हम पॉलिटिक्स बोलते हैं माहौल गर्मा ही जाता है, सो वी हैव वन मोर क्वेश्चन हियर सरपंच मैम के लिए। तो ये क्वेश्चन है मिस्टर इम्तियाज़ का, जो जॉइंट डायरेक्टर इंफॉर्मेशन से आया है। तो उन्होंने अपने एक्सपीरियंस से बोला है मैम ले, जब ये जितने लेडीज़ सरपंच या पंचेस अभी हैं, तो जब मीटिंग्स होते हैं, कुछ भी रिप्रेजेंटेशंस होते हैं, तो लेडीज़ सरपंच या पंच की जगह पे उनको उनके हस्बैंड्स रिप्रेजेंट करते हैं। तो क्या आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से आपने ऐसा कुछ देखा है? अगर कुछ ऐसा है तो आई थिंक इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट। सॉरी इम्तियाज़ ले, हमारे जो लद्दाख जैसे इस जगह में अभी तक कोई नहीं लगती कि अपने वाइफ की जगह हस्बैंड अटेंड करे। ये मेरे नॉलेज में नहीं देखी। मैं बहुत से मीटिंग अटेंड करती हूँ, जहाँ भी जाए जो लेडीज़ होते हैं लेडीज़ ही होते हैं। अगर कहीं यक्का दुक्का उसके पत्नी कहीं कोई प्रेगनेंसी हो, कुछ भी हो, उस वक़्त उसका हस्बैंड नहीं आते हैं, उनके नए सरपंच आते हैं। तो यहाँ लद्दाख जैसे गांव में नहीं होती हैं। हमने पहले एक जगह टूर गई थी जहाँ उत्तराखंड जैसे में, वहाँ बहुत से होते हैं कि लेडीज़ लोग वैसे सरपंच के रूप में बैठते हैं, तो उनके हस्बैंड चलाते हैं, सिर्फ वो हस्बैंड चलाते हैं, सिर्फ इसके रूप में बैठते हैं। मैडम जी को भी उसके बारे में बहुत से नॉलेज। हमने क्वेश्चन किया था उस वक्त, आप लोगों क्यों नहीं चलाती? तो वो लोग बोलते हैं कि हमारे हस्बैंड ही चलाते हैं। यहाँ हमारे लद्दाख जैसे गांव में ऐसे नहीं कि हस्बैंड चलाते हैं वाइफ की जगह, ये नहीं है। ये तो मेरे ख्याल से मुझे नहीं देखा है। थैंक यू इम्तियाज़ सर, शायद आप का क्वेश्चन आंसर हो गया है। बट अगर ऐसा है, बट इवन सम इंस्टेंसेस हैव कम टू माई नोटिस ऑल्सो मैम, इवन इन लद्दाख कि मेल्स आते हैं, तो दैट इज़ वन थिंग जहाँ हमें देखना पड़ेगा कि इज़ इट बिकॉज ऑफ मेल डोमिनेंस अगेन, or is it incapability, as you said, of the women? Yes. So we have a question from Mr. Tsewang Nurbu to Padma ma'am. He's asked, ma'am, what steps are you taking to provide higher education at far-flung areas of Ladakh? And one more question from Firdaus. He's asking about the future plan of one-stop center. देखिए, हायर एजुकेशन की बात है। ऑलरेडी वी हैव 6 कॉलेजेस इन लद्दाख। नुब्रा कवर करते हैं, खलसे में है, ले में, एंड करगिल में सांकू में एक नया कैंपस ऑफ कैंपस करगिल का खुला है। पहला हम लोगों ने प्रोवाइड किया है, हॉस्टल्स आर बीइंग बिल्ट अप मैम। लास्ट ईयर से हमने स्टार्ट किया। वी आर एक्सपेक्टिंग विद इन 2 years देयर वुड बी हॉस्टल्स इन एवरी कॉलेज, कि कोई भी आए हॉस्टल्स में रहकर किसी भी कॉलेज ऑफ चॉइस में जाकर पढ़े, क्या कहते हैं, पीयर लर्निंग भी हो। उसके बाद ये ऑनलाइन सिस्टम भी है। देखिए, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में बहुत फ्लेक्सिबिलिटी दी गई है। 40% ऑफ कोर्सेज हम लोग ऑनलाइन कर सकते हैं, बट पर्सनली आई फील कि पीयर लर्निंग बहुत ज़रूरी है। सो वी नीड टू गो टू कॉलेजेस एंड स्टडी देयर। देन वी हैव लॉट्स ऑफ स्कॉलरशिप्स मैम। लद्दाख में हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स स्कॉलरशिप लेते हैं। डेटा आई थिंक निल्जा के पास होगा, डिस्ट्रिक्ट ऑफिस के पास, जो स्कॉलरशिप में अंडर प्रधानमंत्री स्पेशल स्कॉलरशिप स्कीम, इट्स ओनली फॉर जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख, स्टूडेंट्स बाहर जाते हैं। देन वी हैव पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप अंडर मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, वी हैव पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप अंडर मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स। सो हमारे ऐसे कोई स्टूडेंट नहीं है, जहाँ तक आई अंडरस्टैंड, हु आर eligible for this scholarships but are not getting it. Ma'am, as such कोई ceiling अभी हमारे यहाँ पे ऐसा है नहीं. I have not found any students who is deserving and wants financial help and is not getting it. अभी हम लोगों का मेडिकल कॉलेज लद्दाख में खोलने का मैम पूरा प्लान है. प्रपोजल हैज़ गॉन, इट इज़ इन द फाइनल स्टेजेस. इंजीनियरिंग कॉलेज खोलने का मैम वो भी प्रोसेस हम लोगों ने स्टार्ट किया है. हमारे ITIs हैं, अभी भी हमारे ITIs और पॉलिटेक्निक कॉलेज में सारे सीट्स फिल्ड अप नहीं हैं. सो हमारे कॉलेजेस में अभी बहुत सारे सीट्स अवेलेबल हैं. I think we have enough capacity to take in the entire population of Ladakh. जबकि I think more than 50% students अभी भी बाहर जा रहे हैं. Now we have University of Ladakh, we have Sindhu Central University which is coming up. So education has got a very good, I think, future in Ladakh. अगर हमें students लेना चाहें, but again as I say, they are free to go wherever they feel. Harvard जाए, we have overseas scholarship. कोई बाहर जाना चाहे, कोई केरला में पढ़ना चाहे, चेन्नई में पढ़ना चाहे. So I think whatever they want, they have a whole choice of education. So second question was from Firdaus about
the one-stop center and देखिए वन स्टॉप सेंटर ले करगिल दोनों में एवरी डिस्ट्रिक्ट में एक वन स्टॉप सेंटर ज़रूरी है. अगर रिक्वायरमेंट आगे आता है वी कैन ओपन इट इन सब डिस्ट्रिक्ट्स ऑल्सो, बट एज ऑफ नाउ वन स्टॉप सेंटर जो ले में है, जो करगिल में है, वहाँ पर वी आर एबल टू मीट वट एवर रिक्वायरमेंट. जितने भी हमें कॉल्स आते हैं डिस्ट्रिक्ट कॉल्स, हम लोग मीट करें मैम. हमारे केसेस कंपेयर टू एनी अदर स्टेट इन द कंट्री. यस मैम. एंड प्लस मैम केसेस हमारे अक्रॉस द कंट्री, किसी भी स्टेट, चाहे आप सिक्किम से भी ले लें, मैम हमारे केसेस बहुत कम है रिलेटिवली. सो आई थिंक ऑन अ मंथली बेसिस वी हार्डली गेट 2 or 3 केसेस. तो हमारा पूरा सेटअप इज़ रेडी. सो it's available and it's ready to cater to any requirement. Thank you, ma'am. The session is going really interesting, but we have time constraint as we have to start with the second session of today's event. If we have any question from the audience, one last question we can take. Hello. Good afternoon, ma'am. My question is for Ma'am Niyam Mishra. Ma'am, what is the one thing you have done when you were younger that you regret, but now looking back, you are happy about? I think I don't regret anything. Because like I told somebody other day that I was very keen to become a doctor. So I wanted to go for MBBS, but when I passed my class 12th, I was underage, so I couldn't appear. And when I was doing my BSc, so my family members said, now you should not appear because unnecessarily you'll be wasting a lot of time. So I'm happy that good I didn't appear. Maybe I failed, so I would have been regretting. Thank you. Anything else? Thank you, ma'am. Thank you so much, ma'am. So just coming to the conclusion of this session, as pointed by Ma'am Neelam here, I would request the panelists here, if quick half a minute or 1 minute, you speak on the targets if you have in your fields, your lines regarding digital technology. I would like to take it from all of you. Keep it really brief and short. That's my request. Thank you. या मेरा जो हमारा हाउसिंग एंड अर्बन लोकल बॉडी से वी प्रोवाइड सर्विसेज, और हम जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स है मैम, वी आर इम्प्लीमेंटिंग दो स्कीम्स लाइक PMAY, NULM, स्वनिधि एंड ऑल. And fortunately, Ladakh was on the top amongst the UTs in implementing the Swanidhi scheme. तो उसमें ना मैम हमारा एज पर द टारगेट है, वी हैव ऑलरेडी अचीव्ड एंड क्रॉस दैट टारगेट. And but now we are looking for making the women Swanidhi, almost all of them are women this thing beneficiaries मैम. तो उसमें हमें ये हम कर रहे हैं कि जो जैसे ऑनलाइन ट्रांजैक्शन है वो नहीं कर रहे, जैसे आप बता रहे थे फ़ोन देना है किसी को, वो क्योंकि हमारे जितने भी है यहाँ पे वेजिटेबल सेलर्स वगैरह जो भी है स्वनिधि के जो बेनिफिशरीज है वो बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं थे मैम. तो हमने टाइम एंड अगेन हमने कैंप वो करके अभी ना हम टारगेट कर रहे हैं कि ऑल ऑफ देम शुड डू दिस डिजिटल ट्रांजैक्शन. अदरवाइज दे कहते हैं हमारे पास ऐसा है, नहीं कर रहे. तो हमारा एक प्रपोजल अभी चल रहा है कि विल बी प्रोवाइडिंग देम स्मार्टफोन्स, सो उस ताकि वो उनको हम कर रहे हैं, वो हम कैंप्स टाइम एंड अगेन कर रहे हैं मैम. तो वो हमारा एक टारगेट है. एंड PMAY में वी हैव सैचुरेटेड द स्कीम. तो हमने पूरा जो टारगेट हमारा कंप्लीट हो चुका है मैम. तो एंड NULM दो इट वाज काफ़ी साल पहले मतलब हुआ था, लेकिन उतने अच्छे से इम्प्लीमेंट नहीं हुआ. नाउ वी आर क्या कहते हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप के विद द हेल्प ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप, उसको अभी हमारा टारगेटेड है, बट इट रिसेंटली स्टार्टेड फ्रॉम लास्ट मार्च ओनली. तो अभी हमारा NULM में भी हमारा जितना टारगेट है वी आर गोइंग टुवर्ड्स दैट टारगेट एंड इट विल बी कंप्लीटेड बाय नेक्स्ट ईयर. तो हमारा जितना भी सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है उसमें हमने पूरा ऑलमोस्ट 80% सैचुरेट कर लिया. सो स्वनिधि का हमारा अभी वो रहेगा. Thank you, Achille. So, yeah. Actually, I just want to let all the online viewers and the audience here know the recently held workshop of gender equality in politics, because this is very important. As ma'am, political representation of women in Ladakh is very dismal, like rest part of the country. So the reasons the participants cited are many, like I was telling. I will quote some of the reason.
the reasons of low participation of women are lack of knowledge of one's rights. Is a major hurdle for women to participate in politics. They don't know their own rights, so they don't understand how to participate in politics. Secondly, women is engulfed in non-ending responsibilities at home, which is the direct result of non-sharing of responsibilities with their partners. The responsibilities are endless, as every women know there. Third is culturally imposed gender roles which discourage women to take politics as career, and a lack of women role models in politics in Ladakh, especially Ladakh. There are no role models of as in this field. Then there are platforms are not available in Ladakh that encourage women to think about politics, and be a part of it. Then lack of self-confidence and the pressure to limit the rules to the set cultural norms. Then the participants also suggested some solutions. I would like to quote it very quickly. Of course, reservations of seats for women in LHDC is required, which is not there at this point of time, except in Panchayat and Municipal Council. Then awareness about the importance of participation in politics. The women, as in general, they need this awareness. It is very important because they don't know that politics is also there for them. So third is leadership training platforms is required to cultivate self-confidence in women to participate in politics. So these are the solutions that the participants suggested. Thank you. Thank you. Those are very interesting and valuable inputs. Gilzale? Quick 30 seconds. बिकॉज जो इनपुट्स आए हैं आई थिंक स्किल बिल्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है गर्ल्स के लिए, चाहे वो लीडरशिप हो चाहे टेक्निकल हो. सो मेरा टारगेट तो यही है कि एक तो स्टेम फील्ड में आई थिंक वी हैव टू एनकरेज गर्ल्स टू कम. सेकंड स्किल बिल्डिंग, बिकॉज आई एम लुकिंग आफ्टर स्किल बिल्डिंग ऑल्सो. तो आई थिंक स्किल बिल्डिंग इन टेक्निकल फील्ड अभी ITIs में गर्ल्स का एनरोलमेंट बहुत कम है, इवन इन पॉलीटेक्निक. सो आई विल फोकस ऑन दैट एंड लीडरशिप स्किल्स विल कम विद दैट. विल इंक्लूड दैट ऑल्सो इन द करिकुलम. मैम कुंजंगले. My idea is that start working from grassroots level, and once you become popular, you will learn experience also while working in grassroots level. Certainly, you can achieve your goals. Thank you, ma'am. थैंक यू. मैं यही आज के माध्यम से डिजिटल टेक्नोलॉजी जेंडर इक्वलिटी के इसके डेट में यही रखूँगी कि जितने भी लेडीज़ होगा आज के डेट में उनको मतलब पॉलिटिक्स में आने के लिए, इनके लिए सीट रिजर्वेशन सीट रखने के लिए, चाहे LHDC ले हो, पंचायत में हो, जिसमें भी हो, जहाँ भी उनके लिए सीट के लिए रिजर्वेशन सीट रखने के लिए आज के डेट में यही मैं आज के डेट में यही कहूँगी. तो साथ ही साथ ये कहूँगी कि लेडीज़ लोग आगे आने के लिए आप पीछे ना बैठी, क्योंकि आगे आना आप लोगों की बहुत सी ज़रूरी बन चुकी है आजकल के डेट में. जो हम लोग लेडीज़ के ऊपर कितना क्या कुछ बीत रहा है वो हम लोगों को पता है. तो मैं अपने हिसाब से अपने गाँव में जितने भी लेडीज़ SHGs ग्रुप 45 ग्रुप मेरे गाँव में चल रहा है जी SHGs ग्रुप, उनको आज के डेट में मैं सभी को रजिस्ट्रेशन कर रहा हूँ, क्योंकि इनको डिजिटल्स होने के लिए जो कि उनको आने वाले दिनों में जितने भी गवर्नमेंट्स के स्कीम हो वो सारा उनका फ़ायदा मिले. तो आप लोगों में यही मैं आज के डेट में वुमेंस डे के दौरान यही रखूँगी कि जितने भी लेडीज़ होगा उसके लिए हमें रिजर्वेशन सीट तो ज़रूरी मिलना चाहिए, ना कि लड़कियों को फिर रिजर्वेशन सीट के बगैर तो हमें इलेक्शन लड़ने का मौका ही नहीं मिलती. थैंक यू. थैंक यू. अचले डॉक्टर इंचले क्विक वन. ओके थैंक यू. जैसे कि मैम मैंने पहले बताया था कि हमारा एक यूनिक ID होता है हेल्थ ID. तो हॉस्पिटल में लद्दाख UT लद्दाख ने अभी तक 100% अचीवमेंट किया है मैम, उसके लिए एक नेशनल अवार्ड भी मिला है. अब 2-3 महीने पहले एक और हमने स्कीम शुरू किया यहाँ पे. जो बेबीज़ डिलीवरीज होती है इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज, उनको विदिन 48 आवर्स यानी कि 48 आवर्स के बाद डिस्चार्ज हो जाती है मदर और बेबी दोनों. विदिन 48 आवर्स बर्थ रजिस्ट्रेशन होती है, MC के साथ रिलेशन वहाँ से फिर सर्टिफिकेट आ जाती है और उसी वक्त बेबी का हम आधार भी करते हैं मैम. तो अभी ये 50% से ऊपर जा रहा है, तो हम ये चाहते हैं कि 100% हो बिफोर डिस्चार्ज. अच्छा मैम, when we talk about targets in banks is basically 100%. So but जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, ले में the number of account holders who are females is around 46,000 and उसमें से around 27,000 are women who are using digital platforms. So it comes out to around 61% women who are using. So our main target is to make it 100%.
Same is for Kargil also. Kargil, the percentage of women who are using digital platforms is a little less. It's around 48%. But as banks, we are striving hard. We give door-to-door service, and we are empowering women by financial literacy programs, जिसमें उनका participation हम ज़्यादा stress करते हैं. इसी के through हम women को empower करने की कोशिश कर रहे हैं, मैम. Thank you. NIC तो वैसे ही काम कर रही है गवर्नमेंट के स्कीम्स को IT में इम्प्लीमेंट करने के लिए. अब हमारा नया टारगेट ये होगा कि जो भी गवर्नमेंट के स्कीम्स आ रहे हैं उसको महिलाएं कैसे यूज़ करें, उनके लिए एक ट्रेनिंग, उसको सिखाने के लिए महिलाओं को एक ट्रेनिंग प्रोवाइड करें, उनका स्किल डेवलप करें. क्योंकि अगर हम एक महिला को शिक्षित करते हैं, उनका एम्पावर करते हैं, तो हम एक इंडिविजुअल को नहीं कर रहे, बाकी पूरे समाज के लिए कर रहे हैं. तो इसलिए हमारा यही फोकस होगा कि उनको ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करें. Thank you, Nilza. So, at the end, just one take from my side. The quote is like, God help those who help themselves. So we have to help ourselves. As I say, I feel myself digitally uneducated, so I can only help myself by studying or practicing or whatever. So इस तरह से या तो मैम सोसाइटी का सेटअप हमारा ऐसा या स्टीरियोटाइप माइंडसेट है. वी ऑलवेज टेंड टू डिपेंड ऑन अदर्स कि महिलाओं का माइंडसेट ऐसा है, चल जाएगा, कर लेंगे, वो कर लेगा टाइप. सो वी हैव टू कम आउट ऑफ दोज closets and comfort zones and strive hard. Thank you once again to all the panelists who have joined us here in the first session of today's event on International Women's Day. So before we wind up, ma'am, I would like to bother you once again, given your diverse experience and interaction with women across the country. So Hindi mein bhi, ma'am? After lunch. Just after so in particular अगर लद्दाख के महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए, one important message that has to go from you, ma'am. Yesterday also I addressed, so my is that I call upon all my young girls to work very, very hard. First, try and recognize your potential and then work on that potential. And you can have even a hero, role model also in front of you. Like the other girl was saying for politics, so I said ki you can keep on hearing Smriti Irani. Similar way, if you want to be an engineer, civil engineer, then just search for on Google, take the advantage of Google, search who has done the best work, who has got award. Well, if you are on social work, then search for that. So means you recognize your potential, set your target, work hard for that, because there is no substitute to hard work. We cannot get anything if we don't work. You can't get everything in plate, na? आपको कोई plate में लाके नहीं देगा. Even if I cook for you, आपको खाना देंगे तो आपको अपने आप ही खाना है. कोई और आपके लिए खाएगा नहीं, कोई और डाइजेस्ट नहीं करेगा उसको. इसलिए मेरा मैसेज यही है यंग गर्ल्स के लिए कि आप प्लीज़ अपना टारगेट सेट करके उस पर वर्क करिए, हार्ड वर्क करिए, एंड जितना हो सके उतना एजुकेशन, उतना ज्ञान प्राप्त करिए जिससे आपका भविष्य सुधर सके और आप बाकियों को भी फ़ायदा दे पाएंगी. उसके अलावा जो हाउसवाइफ्स हैं, यंग मदर्स हैं, उनको अपने गर्ल चाइल्ड पे स्पेशल अटेंशन पे करें. और गर्ल चाइल्ड के प्रोग्रेस के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो नारा है वो बहुत अप्रोप्रिएट है, उस पर कार्य करिए. और जो आपके ग्रैंड मदर्स हैं और इवन मदर्स, इफ़ यू हैव सम स्किल, डू पास इट ऑन टू योर डॉटर्स. Just don't keep it yourself. Don't think your daughter is studying, she is going to be a doctor, so she should not have skill. Like I know a doctor who is a very, she has done from Lady Harding and Arunachal Pradesh ki hain. And in her pastime, she just knits for her children, her friends. Even to my granddaughter, she presented a sweater. So the skill is always helpful because that is going to be with you all the time. So do pass on the skills. And I will say that all my men folks also, please support us for your better future. Thank you. Thank you so much, ma'am, for your valuable words and inspiring all of us. We need role models. I want to thank our online audiences for being so patient. आप लोग हमसे जुड़े रहे और यही हमारी रिक्वेस्ट है कि आप जुड़े रहें अभी, क्योंकि हमारा भी दूसरा सेशन होने वाला है एक छोटे से अंतराल के बाद.
और जो लाइव ऑडियंस है उनसे एक शिकायत बोले मैम, उन्होंने बोला है कि लोकल लैंग्वेज यूज़ नहीं किया है, तो उनसे मैं कहना चाहूँगी व्हेन वी टॉक ऑफ डिजिटल प्लेटफॉर्म तो वी डोंट हैव लिमिटेशंस ऑफ बाउंड्रीज। तो हमारे यहाँ पे भी नॉन लोकल स्पीकर्स है, पार्टिसिपेंट्स है, एंड वी एक्सपेक्ट कि ऑनलाइन भी हमारे काफ़ी सारे नॉन लोकल ऑडियंसेस है, तो उन सबको ध्यान में रखते हुए हमने लैंग्वेज कॉमन रखा है, हिंदी और इंग्लिश। थैंक यू ऑल वंस अगेन, थैंक यू ऑल द पैनलिस्ट एंड स्पेशली थैंक यू Neelam Mishra ma'am, the First Lady of UT Ladakh, for sparing your valuable time and to be a part of this event. And thank you Padma ma'am for the brain behind this event and always encouraging every one of us. Thank you everyone. And I would like to thank all the panelists out here, including ma'am. Thank you so much. आपने अभी रोल मॉडल के बारे में कहा, आपने कहा कि हमें आगे आके फील्ड में करके देखना है कि किस तरीके से हम काम कर सकते हैं। तो मैं यही प्रॉमिस करना चाहूँगी अपने मैम के साथ साथ जितने भी हमारे गेस्ट स्पीकर्स एक्सपर्ट्स हैं और साथ ही साथ हमारे ऑडियंस एंड ऑनलाइन जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं, ये नीजा गुना त्यो जुचे राग तेने दक्सा सुपंगाता रोल मॉडल जिंगा का मी गुलांगाता खों छगलास ना जिंगाता खों शेसाडो Kongun ngaje ta ina kartex peka to sab new jina nije dulanga je khoin. We have role models ma'am for you and you'll be amazed to see. आप देखेंगे कि जिस तरीके से इन लड़कियों ने काम किया है मेरे ख्याल से आप दंग रहेंगी ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि जिस तरीके का काम उन्होंने किया है, जिस तरीके से अभी आप लोगों ने कहा है गवर्नमेंट ने सपोर्ट किया, हर तरीके से इन्होंने करके दिखाया है। तो ऐसा जज्बा हमारे लद्दाख की लड़कियों में है, वो आपके सामने हम प्रस्तुत करेंगे। कासल हनग्यास तेने you manpa yung chane tus April de nanga tene I request all of you to please be seated among the audience. Yung chane tus yung chane da April nanga tenga tangi jat same santo do ngaje GIPRA post nangjin ngaje yuan nangjin tene G20 Global 20 ka ngaje tiwaring iji dula jaktung pulat ten Ladakh sinanga April de nanga Y20 junjita nga tae ka digrim chachezunok ngijat sangma tene tes kola chinok chunjinga jingi jidula borchezin tene yang skarma ngi sena yang lokte jalin yang sker lokte jalin chejuna illa stigma digreminanga la jua choksla te Ladakh se pomona khut cham shigil dan ngan chezduk chong ngan chezduk te ngi jedula nga khonsame stantiot diringi jedula salsal chuste borchezin yang jalin minute ngis skar tusot ngi sena ngi jal samadulla yang jalin tujeche